مدینہ تو آ کے سکون ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. ہمارے پیر صاحب کا در ہے. ہم امیر اہل سنت کے جو کہ ہے وہ ماحول میں بالکل خوش ہیں. فیضان مدینہ تو ماشاءاللہ مدینہ یاد آتا ہے. الحمدللہ فیضان مدینہ کراچی کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا ہے. یہاں پہ آ کے تو بس دل چاہتا ہے کہ بس یہیں رہیں. دعوت اسلامی میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کو وہ چیز یہاں پرووائڈ ہو سکتی ہے جس کے لیے آپ کو مسلمان اور اچھا مسلمان جو ہے وہ بنا دے گی. اللہ پاک کے راہ میں جتنا ہم صدقہ دے سکتے ہیں دعوت اسلامی کو ڈونیٹ کرنا چاہیے. پہلی دفعہ جڑے ہیں ہم اس ماحول کے ساتھ تو کچھ بننے کا موقع مل جائے گا. پوری زندگی میں جتنی بار بھی ہمیں موقع ملا انشاءاللہ فیضان مدینہ ہی آئیں گے. بہت ہی ہم کو اچھا لگا, بہت ہی ہم کو پسند ہے. انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ہم آتے رہیں گے. الحمدللہ ابھی میں نے 3 دن قافلے میں جانے کی نیت بھی کر لی. سرکار کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, اور نور کی آمد مرحبا, آقا اکتار کی آمد مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ مدنی مذاکرے میں موجود عاشقان رسول, آپ نے سنے مدنی مذاکرے میں آئے ہوئے عاشقان رسول کے تاثرات. اگر آپ بھی علم دین کا خزانہ حاصل کرنا چاہتے ہیں آ جائیے فیضان مدینہ اور آقا کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے مہینے میں ہونے والے مدنی مذاکروں میں شرکت فرمائیں. اگر فیضان مدینہ حاضر نہیں ہو سکتے گھر بیٹھے مدنی چینل کے ذریعے مدنی مذاکرہ دیکھ سکتے ہیں. آئیے چلتے ہیں میرے اہل سنت کی جانب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. چودہ سو 1448 ہجری کے ربیع الاول شریف کی آج 12 تاریخ گزری اور اب رات شروع ہوئی ہے 13ویں. اس مناسبت سے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 4 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 13. بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں, لہذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. چودہ سو 48 ہجری کے ربیع الاول شریف کی آج 13ویں رات عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں چاند رات بلکہ اس سے اگلی رات سے جو مدنی مذاکرے کا تسلسل تھا آج اس کی آخری کڑی ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں. یہ ضروری نہیں بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ قائم رہتا نہیں. بھول ہوئی تو انشاءاللہ قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السيد الشيخ محمد الياس العطار القادري, معي سؤال. كيف كانت الأمانة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه حتى أقر له ذلك المشركون ولقبوا بصادق الأمين. جزاكم الله خير. سیدی پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا امانت داری اور سچائی میں کیا انداز تھا.
کہ کافر بھی آپ کو صادق اور امین ماننے پر مجبور تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ اور پرفیکٹ بات کی۔ ہماری طرح پیچ دار گولم گول جو ٹالم ٹول اور گول گول باتیں، یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ نہیں تھی۔ ہر طرف سے کلیئر میرے آقا، معصوم عن العصیان، ہمیشہ سچ بولتے رہے، اور امانت غیر مسلم بھی آپ پر بھروسہ کرتے تھے، اور آپ صادق اور امین یعنی اظہار نبوت سے پہلے ہی صادق و امین مشہور ہو گئے تھے کہ یہ فرد جو ہے سچا اور امانت دار۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی امانت داری میں اس قدر نمایاں رہی کہ آپ کو امین یعنی امانت دار کے لقب سے پکارا جاتا۔ جب آپ نے اسلام کی دعوت کا آغاز فرمایا اور قریش کے وفد یعنی ڈیلیگیشن سے رومی بادشاہ نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا، تو دشمن کی زبان سے جن خوبیوں کا ذکر ہوا ان میں امانت داری بھی شامل تھی۔ دشمن جو تھے اگرچہ وہ تھے دشمن، لیکن امانت داری اور دیانت داری کا انکار نہیں کرتے تھے سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امانت داری بہت عمدہ صفت ہے، اور امانت داری نہ کرنا یہ بہت بری صفت اور منافقت اس میں ہے، اور منافق کی یہ مطلب ایک حصہ منافقت کا۔ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف میں حدیث ہے کہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، 4 باتیں جس میں ہوں وہ خالص منافق، اور جس کے اندر ان میں سے کوئی ایک ہو تو اس میں نفاق کا ایک حصہ ہے، یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے۔ نمبر 1، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ نمبر 2، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 3، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔ نمبر 4، جب جھگڑا کرے تو بیہودہ بکے۔ حوالہ بخاری شریف جلد پہلی صفحہ 25، حدیث نمبر 34۔ بخاری شریف حصہ پہلا اور صفحہ نمبر 25، حدیث نمبر 34۔ حکیم لقمان کی خدمت میں عرض کی گئی، آپ اس مرتبے تک کیسے پہنچے؟ فرمانے لگے، سچ بولنے، امانت ادا کرنے اور غیر ضروری کاموں سے بچنے کی وجہ سے۔ یہ لقمان حکیم مشہور ہے، اور یہ لقمان حکیم اس وجہ سے نہیں کہے جاتے تھے کہ ڈاکٹر تھے، جو وہ حکمت جو کرتے ہیں دیسی دواؤں والے، وہ آج کل اس کو وہ بولتے ہیں یار نہیں، یہ جو ان کی دواؤں کو ایلوپیتھک تو MBBS والے ہوتے ہیں، اور ذہن سے نکل گیا جو دوائیں حکیم لوگ جو دیتے ہیں اس کو، تو یہ اس طرح کے حکیم نہیں تھے، مطلب ان معنوں کا حکیم نہیں تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ حکمت بھی یا جانتے ہی مت ہوں گے، اللہ کے بہت برگزیدہ بندے اور ولی اللہ، یہاں تک کہ ان کی قرآن کریم میں ان کے تعلق سے پوری ایک سورت ہے، سورہ لقمان، اگلی امتوں کے بزرگ تھے یہ، اور حبشہ کی طرف کیے تھے، اور ان کے اقوال بڑے اپنے بیٹے کو نصیحتوں کے مشہور ہیں، جو حدیثوں میں روایتیں کی جاتی ہیں۔ یہ انہوں نے اپنی یعنی کہ اس ترقی کا راز بتایا جب پوچھا گیا، جیسے اس مرتبہ پر اس طرح پہنچے کہ سچ بولا، ہمیشہ سچ بولنے، امانت ادا کرنے، خیانت نہ کرنے اور غیر ضروری کاموں سے بچنے کی وجہ سے،
और हुस्न इस्लाम भी है कि गैर ज़रूरी चीज़ों से बचे, गैर ज़रूरी बातें, गैर ज़रूरी चीज़ें, गैर ज़रूरी काम से बचे। ये ऐसे मतलब थे गैर ज़रूरी बातों से। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सोबत, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की सोबत से आप मुशर्रफ हैं। तो ये एक वाक़या इनका कि दाऊद अलैहिस्सलाम कुछ बना रहे थे, बड़ा दिल चाहा कि क्या बना रहे पूछूं, लेकिन ये सोचकर खामोश रहते थे, पूछ कर करूँगा क्या, मैंने लेना तो है नहीं इसको, मैंने मेरा कोई मकसद क्या है। तो यूं मतलब आप पूछते नहीं थे कि ये क्या कर रहे हैं, ये गैर ज़रूरी बात हो जाएगी। आखिरकार हज़रत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद ही मतलब वो बनाने के बाद फरमाया कि ये ज़िरा है जो जंग में काम आती है। अब ज़िरा बख्तर का वो दौर चला गया, अब इसकी जगह वो बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह आते हैं मुतबादिल के, उसमें गोली असर नहीं करती, उसमें स्टील की प्लेट होती है साथ में। तो ये वो इसी तरह की चीज थी ज़िरा। तो पूछा नहीं लेकिन फिर भी इनको पता चल गया। तो ये एक कुदरती, मेरे साथ भी एक यादगार वाक़या हुआ। एक दौर गुजरा कि मुझे बस वो कम बोलने का एक मतलब धुन सवार हो गई थी कुफले मदीना। तो एक वहाँ बम्बई जिन दिनों काफिला गया था इंडिया, तो एक मकान पे हम लोग, मैं सुना बहुत था कि बहुत महंगे होते हैं मकान, तो किसी मकान में जाने का या तो ठहरने का कोई, तो वहाँ कमरे भी छोटे होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। तो मेरे वो दिल में आता रहा कि यार पूछू ये है कितने का, तो मैं पूछता नहीं था, मैं करूँगा क्या, वही मतलब इत्तेफाक से, मतलब मैं बोलता तो बहुत हूँ, लेकिन वो उस वक्त धुन बहुत चढ़ी थी कि नहीं बोलना है फालतू बात। वो नहीं पूछा, वो दिल चाहता था कि मुझे पता चले कि है कितने का, महंगाई बहुत है। तो इत्तेफाक से साहिब खाना ने खुद मुझे बताया कि इधर मकान बहुत महंगे हैं और ये इतने करोड़ का है। मेरा चलो यार अच्छा, मैंने पूछा नहीं, बगैर पूछे अपना काम हो गया। तो हज़रत लुकमान की बरकत, अल्लाह नसीब करे, बहरहाल मैं बोलता बहुत हूँ, अल्लाह करे कि मैं सही मानों में खामोश तबीयत हो जाऊँ, कुफले मदीना लग जाए। ज़रूरत का बोलना ये वो नहीं है इसके खिलाफ, ये तो निकी की दावत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हज़रत सैयदना लुकमान हकीम रहमतुल्लाह अलैह के आका ने एक बार फरमाई, क्योंकि ये एक अरसा गुलाम है तो ये थे ही आका, लेकिन बहरहाल वो ज़ाहिरी तौर, जैसे बिलाल हबशी भी किसी के गुलाम थे, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह, उन्होंने उनको पैसे अदा करके छुड़ाया, भारी रकम देके छुड़ाया और फिर इनको आज़ाद कर दिया। तो ये भी गुलामी में थे। एक बार इनके आका ने कहा कि बकरी ज़बा करके उसके सबसे बेहतरीन 2 हिस्से ले आइए। आप बकरी ज़बा करने के बाद उसकी ज़बान और दिल निकाल कर ले गए। कुछ दिनों के बाद आका ने इनसे दोबारा कहा बकरी ज़बा करके इसके सबसे बदतरीन हिस्से ले आइए। आपने फिर ज़बान और दिल लाकर पेश कर दिए। तो आका के पूछने पर आपने बताया, जब से सबसे अच्छे कहे तो भी ये, सबसे बुरे हिस्से कहे तब भी तुमने यही दिए, इसमें क्या हिकमत क्या है? तो आपने फरमाया कि अगर हज़रत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर ज़बान और दिल सही हो तो सबसे बेहतर है, और अगर ये बिगड़ जाए तो इनसे बढ़कर बुरी चीज़ कोई नहीं। कितनी प्यारी और पूरी हिकमत बात है। तो इसी हिकमत की बातें आपसे काफ़ी सादिर होती थी, तो इसलिए इनको हकीम कहते हैं। हकीम माने दाना, अक्लमंद, ये बहुत अक्लमंद थे। इस वाक़या का जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, तो ये हवाला है तफसीर तबरी जिल्द 10 सफ़ा 209। तो ये जो मैं हकीम कर रहा था, तो वो हर्बल कहते हैं, ये देसी दवाओं को इंग्लिश में, गालिबन इंग्लिश में कहते हैं हर्बल। तो ये अपने
हर्बल वाली वो इसके हकीम के हिसाब से हकीम मशहूर नहीं है, हकीकत में हिकमत की बातें इनसे सादिर होती थी, बड़ी उम्दा बातें, और ये अक्लमंद बहुत है। हकीम कहते हैं अक्लमंद, दाना, समझदार, और बहुत ज्यादा समझदार। तो जो अहले इल्म भी हो, इल्म बहुत रखता हो और समझदारी की बातें बहुत करता हो, तो वो हकीम होता है। ना कि मतलब दुनिया का कोई तालीम याफ्ता शख्स हो, अगरचे वो अक्लमंद हो, लेकिन लफ्ज हकीम उसके लिए इस्तेमाल मैंने होते नहीं देखा है। अब ये पुरानी इस्तिलाहें आजकल कहाँ हकीम कहते हैं। आजकल इस तरह की अक्लमंद बात करने वाली मतलब जो होती है शख्सियत, उसको हकीम बोलने का रवाज नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अनुमा से रिवायत है, ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूडानियों की सोहबत इख्तियार करो, क्योंकि इनमें से 3 हजरात अहले जन्नत के सरदारों में से हैं। नंबर 1 हजरत लुकमान हकीम रहमतुल्लाह अलैह, हजरत नज्जाशी बादशाह नज्जाशी रहमतुल्लाह अलैह। नंबर 3 मौज़िन रसूल हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हवाला मौजम कबीर जिल्द 11 सफ़ा 158 हदीस नंबर 11482। तो ये मैं बस सूडान का सोच रहा था, इस हबशा का हिस्सा है सूडान, लेकिन ये कि मैं सोच रहा था ये सूडानी थे। और सूडानियों का कलर जो होता है वो बिलाली, जिसको आमतौर पर हमारे यहाँ बोला जाता है। तो ये इस तरह वहाँ के थे सूडान के। सूडान इस्लामी मुल्क है, और वहाँ मैंने नोट किया है जो अपनी बात, सुन्नियत, इश्क रसूल जबरदस्त। एक बार हम मक्का मुकर्रमा से मदीना तैयबा हाजिरी के लिए जा रहे थे। एक वो गाड़ी का नाम भूल गया, एक मखसूस किराए की होती है, तो इसमें थोड़ी सवारियां होती है। तो वो उसमें हम बैठे हुए थे, तो ये कुछ सूडानी काफिला भी था एक। मैंने इनसे बातचीत की, वो तो खैर अरबी बोलते हैं थोड़ी थोड़ी गुजारे के लिए। तो ये इतने पक्के सुन्नी थे। वो या शेख अब्दुल कादिर जीलानी, मैंने कहा आप ये कहते हैं, क्यों नहीं कहते? वो कहने लगे इस तरह, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शयन दिल्ला वगैरह। फिर इनके साथ एक बुजुर्ग थे, सब एक जैसे ही थे, मगर जो उम्र रसीदा थे, इसकी तरफ इन्होंने कहा ये हमारे शेख हैं। इन्होंने कहा कि ये हमारे शेख हैं और बड़े बाकरामत बुजुर्ग हैं ये, और ये दिलों के हाल बता देते हैं। तो ये तो एक तजर्बा हुआ। इसके अलावा भी मतलब मुलाकातें वास्ते पड़े हैं बाज़ औक़ात, और तो माशाअल्लाह बड़े खुश अकीदा लोग हैं। और अपना दावत इस्लामी का भी काम हुआ है मतलब, और मेरा उसने जन्ने वहाँ एक मुबल्लिग भी थे, वो फिर फोत हो गए, अल्लाह गरी के रहमत करे। मैं कभी जानने की सआदत नहीं मिली। सूडान अच्छा मुल्क है मसलक के हवाले से, अकीदे के हवाले से, इस्लाम, सुन्नियत, नमाजें, अल्हम्दुलिल्लाह। इश्क रसूल कूट कूट के इनके अंदर मैंने नोट किया है। बाज़ औक़ात जो मुलाकात वगैरह हुई है, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो 3 बुलंद व बाला हस्तियों का भी आला हज़रत ने हदीस पाक में सरकार ने तज़किरा फरमाया ना, अल्हम्दुलिल्लाह। सिरातुल जिनान जिल्द 7 सफ़ा 484 पर ये 4 बयान की गई, ये 4 हिकमत की बातें बयान की गई हैं। 4 मदनी फूल दिए गए। नंबर 1 हिकमत, अक्ल और फहम, यानी समझ। हिकमत अक्ल और फहम को कहते हैं। अक्ल और फहम वही फहम माने समझ। नंबर 2 हिकमत वो इल्म है जिसके मुताबिक अमल किया जाए। नंबर 3 हिकमत मारिफत, यानी पहचान और कामों में पुख्तगी यानी मजबूती को कहते हैं। हिकमत नंबर 4 हिकमत ऐसी चीज है कि अल्लाह पाक उसे जिसके दिल में रखता है यह उसके दिल को रोशन कर देती है। हवाला तफसीर खाजिन जिल्द 3 सफ़ा 470। हज़रत अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह
रूहुल बयान में फरमाते हैं हज़रत लुकमान हकीम रहमतुल्लाह अलैह तिब यानी मेडिकल और हकीकी इल्म और हिकमत के दोनों लिहाज से हकीम थे। तफसीर रूहुल बयान जिल्द 7 सफ़ा 73। ये इनके बारे में ये मैंने कहीं पढ़ा था गालिबन कि जड़ी बूटियां है ना, जड़ी बूटियां से कलाम करती थी कि हम किस मरज के लिए बताती थी, सुबह करामत थे। लेकिन ये मुझे इसका हवाला याद नहीं है। इन मानो करिए हकीम हर्बल के लिहाज से। अब हर्बल क्या क्या होम्योपैथिक और क्या एलोपैथिक और क्या बायोकेमिक और ये इनकी सब खादिमाएं और लोंडियां हैं ये सारी। तो ये बहुत बड़े बुजुर्ग थे। हज़रत लुकमान हकीम रहमतुल्लाह अलैह के जिक्र खैर हो रहा था। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। My question to Amir Ahl Sunnat is that people show their love to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam by celebrating Milad, but they fail to adopt his teachings in their personal lives. It is as if they have created two separate categories, one for the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and one to follow his teachings. So we ask Amir Ahl Sunnat that what is the meaning of true love for the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam? لوگ میلاد مناکر عشق رسول کا تو اظہار کرتے ہیں، لیکن تعلیمات رسول کا اپنی ذات اور کردار پر اظہار نہیں کر پاتے۔ گویا انہوں نے عشق رسول اور تعلیمات رسول کے دو الگ الگ درجے بنا لیے ہیں۔ امیر اہل سنت اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں کہ عشق رسول کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ عشق رسول کا حقیقی تقاضا کیا ہے، اور ایک عام مسلمان اپنی روزمرہ زندگی کے اندر سنت مصطفیٰ پر عمل پیرا ہو کر محبت رسول کا کس طرح ثبوت پیش کر سکتا ہے، اس پر سیدی آپ میری رہنمائی فرما دیجئے، میرے لیے اور میرے اہل خانہ کے لیے بخشش کی دعا فرما دیجئے اور مدینہ شریف کی حاضری کی خصوصی دعا فرما دیجئے۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، عشق رسول اور تعلیمات رسول اصل، اب وہ اس کو میں اپنے حساب سے ہی کہوں گا، تعلیمات رسول بے شک اپنی جگہ پر، عشق رسول یہ بھی اپنی جگہ پر، اور تعلیمات رسول کی وجہ سے عشق رسول ہمیں ملا۔ لیکن یہ کہ تعلیمات پر بالکل عمل کرنا چاہیے، قدم قدم پر مطلب ہمیں سنتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی یہ عشق اور تعلیمات دونوں ہی پر ترغیب دے رہی ہے۔ لیکن یہاں جو میں نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بے نمازی ہے، عمل نہیں کرتا، تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ عاشق رسول نہیں ہو سکتا۔ عشق اپنی جگہ پر ہے، عمل اپنی جگہ پر ہے، دونوں ہونے چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، سنت پر عمل کرنا چاہیے، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی نہیں کرتا تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو سرکار سے محبت ہی نہیں ہے، اس کے اندر سرکار کا عشق نہیں ہے۔ کہ بعض اوقات اس طرح کا بالکل وہ گنوار اور جاہل قسم کا آدمی عشق میں ڈوب کر ایسا کارنامہ کر دیتا ہے کہ دنیا اشش کر اٹھتی ہے، دیکھتی رہ جاتی ہے۔ اس لیے عشق کسی کی انہیں جاگیر نہیں ہے کہ صاحب یہ شیوڈ ہے، داڑھی ونڈا ہے، فاسق ہے، اس کو سرکار سے محبت نہیں ہے، یہ سندیں ہم نے نہیں بانٹنی، سمجھے؟ کہ بعض اوقات بڑا باعمل ہوگا لیکن عشق رسول اس میں اتنا نہیں ہوگا، لیکن اس میں زیادہ ہوگا اس سے عشق۔ محبت یہ بس ایک قلبی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ جو کہ جس کو جتنا جسے جیسے چاہے نواز دے، یہ مزاج ہے عشق رسول ہے۔ تو یہ پہلے اس لیے وضاحت کر دی، عمل کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے۔ وہ عاشق رسول ہے اور گناہ کرے تو اس کو گناہ نہیں ملے گا، ایسا نہیں، گناہ تو اس کے ہو ہی رہے، لیکن یہ میں کہ بالکل اس کو ہم یوں اٹھا کے پھینک نہ دیں کہ یہ عاشق رسول نہیں ہے، اپنی جگہ پر۔ اللہ ہمیں عاشق رسول بھی بنائے اور عامل سنت رسول بھی بنائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الشفاء شریف میں اسی طرح ارشاد فرمایا ہے کہ محبت جو ہوتی ہے وہ ہر مسلمان کے دل کے اندر لازمی ہوتی ہے۔ بس یہ جو گناہ ہوتے ہیں اور دنیا کے اندر بندہ
مبتلا ہوتا ہے دنیاوی امور کے اندر تو اس وجہ سے یہ اس محبت کے اندر پردے آنا شروع ہو جاتے ہیں، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے یہ خالی ہو۔ ہاں وہی جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ محبت کے اولین تقاضوں میں سے علماء نے یہ بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، آپ کی سنتوں اور آپ کی سیرت پر عمل پیرا ہوا جائے، اور یہ تو ہے ہی کہ تعلیمات پر، آپ کی سنتوں پر عمل کریں گے تو محبت ملے گی، اور محبت ہوگی تو وہ سنتوں پر عمل کروائے گی۔ یحببکم اللہ، میرے محبت ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میری اتباع کرو۔ میری اتباع کرو۔ جب میری اتباع کرو گے تو اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ وہ ہے نا حسن رضا خان کا شعر یاد آ رہا ہے مجھے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو، اس کا تو بیان ہی نہیں جو کچھ تمہیں، اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو۔ تو یہ محبت اور عمل یہ دونوں ساتھ لے کے چلنا، اور دعوت اسلامی یہی ساتھ لے کر چل رہی ہے۔ لیکن میں نے ایک وضاحت اس لیے کی کہ اگر کوئی اس طرح کا ہے، جیسے عام طور پر بولتے ہیں وہ خوف خدا نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، لیکن کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کو اللہ کا خوف نہ ہو، کبھی زندگی میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا جبکہ ہے مسلمان، تو اس کے اندر خوف ہے۔ انہیں مسلمان ہونا یہ بھی تقوی کی مطلب ایک قسم تقوی کہ یہ متقی ہے، ان والوں کر کہ یہ مسلمان ہے، غیر مسلم نہیں ہے، اللہ سے ڈرتا تھا۔ کوئی تو اس کے اندر خوف کی کیفیت دی جس کی وجہ سے اس نے کفر سے منہ موڑا اور اسلام سے رشتہ جوڑا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے امیر اہل سنت، ایک اسلام بہن سوال کر رہی ہے کہ جب کوئی ہم سے خیریت معلوم کرتا ہے تو اس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یا دعا میں کوئی یوں کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا کروڑ بار شکر ہے کہ تو نے مسلمان پیدا کیا۔ امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ ایسا کہنے والے کو کیا لاکھ بار اور کروڑ بار شکر ادا کرنے کا ثواب ملے گا؟ ماشاءاللہ، بات تو سمجھ میں آتی ہے، لاکھوں سلام۔ یہ اب اس پر قیاس کرے یا نہیں کرے، فتویٰ ہے علماء کا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ کہنے سے لاکھوں سلام بھیجنے کا ثواب ملے گا۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، کروڑوں درود یہ جو پڑھے گا، کروڑوں درود پڑھنے کا ثواب ملے گا اس کو۔ اللہ پاک کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تو ہم لوگ ہیں جو گن گن کے سوچ سوچ کے دیتے ہیں، دوں کہ نہیں دوں، دوں کہ نہیں دوں۔ اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے، سب سے بڑی ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ ہم لوگ تو کیا ہے، گناہ گار ہیں، وہ ہم کو نبھا رہا ہے، چلنے کی ہمیں سعادت مل رہی ہے، ورنہ ہمارے اعمال ایسے زمین پھٹ جائے ہم سما جائیں، لیکن زمین نہیں پھٹتی ہمارے گناہوں کے بوجھ سے۔ یہ بھی اس کا کرم، اس کی رحمت ہے۔ تو اب یہاں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کبھی غور نہیں کیا تھا، لیکن اپنے طور پر میں کہہ بھی نہیں سکتا کچھ کہ یہاں 100 کروڑ یا لاکھ بار کہا تو کیا لاکھ بار شکر ادا ہوا یا نہیں، کہا جائے گا یا نہیں، ہاں ہم کہہ نہیں سکتے اس کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اس پر بھی دیکھا جا رہا ہے
یہ یوٹیوب چینل پر اسلامی بہن کا ایک سوال موصول ہوا ہے. یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہو لیکن مسلسل فجر کی نماز رہ جاتی ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ فجر کی نماز کی پابندی اور وقت پر بیدار ہونے کی عادت کس طرح بنائی جائے؟ یہ اس میں اس کو صحیح معنوں میں ندامت اگر ہوتی نا تو ایک بار اگر قضا ہو بھی گئی تو شاید رو رو کر آسمان سر پہ اٹھا لیتا. محاورہ ہے. ارے مطلب اتنا وہ رنجیدہ ہوتا، افسردہ ہوتا، نادم ہوتا، مطلب اور ایسا وہ اپنا ایک کچھ جدول بناتا، شیڈول بناتا جس سے یہ کہ یہ فجر میں اٹھ سکے. اب یہ کچھ کرتا نہیں ہے، خالی بس وہ یار فجر میری رہ گئی، روز رہ جاتی ہے، یہ چلے گا نہیں. اسے اپنی اس نے کوشش کتنی کی، جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کوشش کے حوالے سے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اگر دیر سے سوتا ہے اس وجہ سے آنکھ نہیں کھلتی جس کے لیے لازم ہے جلدی سوئے. اب دیکھو چاہے بڑی رات ہو، چاہے صبح بہارا ہو، چاہے شب برات ہو، کچھ بھی ہو، اگر اس طرح رات جاگنے سے اس کی فجر قضا ہو رہی ہے تو یہ سب اس کو سو کر گزارنا ہوگا ٹائم، تاکہ فجر جماعت بھی نہ چھوٹے. اس وجہ سے یہ سب یہ پالے، جماعت فرض وقت کے اندر ہو جائے. یہ کیونکہ یہ فرض ہے. ہم جو بڑی راتوں کو عبادت کرتے ہیں، نفل عبادت، یہ سب نفل ہے ہی نفل. کوئی نہ جاگے تو گناہگار تو ہے نہیں. فجر اپنی کوتاہی سے چھوڑے گا تو گناہگار ہے. تو یعنی مطلب سوئی ہے. یا چلو اگر ایسا موقع ہے، میں نے شروع میں تو اب تو خیر میں اتنا راستہ نہیں پڑتا نا عیسائی بھائیوں سے، بتاتے تھے، مطلب مجھے پتا ہے کہ یہ پہلے جب یہ رات جاگنے کا اور ادھر نہ فیضان مدینہ نہیں تھی، جب پرانی بات کر رہا ہوں، گلزار حبیب، اور رات رکنے کا بھی ہم نے شروع نہیں کیا تھا. تو اس سے عیسائی بھائی ہوتے تھے کہ جو اپنے علاقے میں اجتماع کے بعد دور دور سے، کراچی کا ایک ہی اجتماع تھا، اب تو 20 سے زائد ہیں، تو یہ اپنے علاقے کی مسجد میں جا کے فجر کے انتظار میں سو جاتے تھے تاکہ فجر پڑھ سکیں. گھر پہ سوئیں گے تو کون اٹھائے گا اتنی دیر اجتماع کے بعد؟ تو فجر کی وجہ سے وہ گھر نہیں جاتے تھے. ویسے کہاں سے لائیں گے یار؟ ایسے حصوں کے صدقے اللہ ہمارے دل کو بھی جگا دے. دل غفلت کی نیند سویا ہوا ہے. لگا تکیا گناہوں کا، پڑا دن رات سوتا ہوں، مجھے اب خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یوں مطلب کوشش. اچھا الارم اب تو آتے ہیں، یہ موبائل فون، یہ بھی اس میں بھی ایسے ٹون ہوتے ہیں کہ بالکل چیخم دھاڑ مچا دیتے ہیں، زور دوار آواز ہوتی ہے کہ بے ہوش میں آ جائے. لیکن یہ کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پھر بھی نہیں کھلتی آنکھ. تو یہ آپشن ہے، مگر یہ کبھی کبھی وہ دغا دے دیتا، نہیں بچتا. دغا نہیں دیتا، اس کے آپشن اس میں کئی ہیں. کہیں انگلی ٹچ ہو جاتی ہے نا تو شاید آگے پیچھے کچھ ہو جاتا ہی ہے، اور اتنا ہم کو آتا نہیں ہے. تو یوں ہم لوگ آزمائش میں. تو خیر میں نے تو وہ یہ اس کو بھی یوز کر رہا ہوں الارم کے لیے، اور منی جو الارم ہوتے گھڑیاں، یہ پرانا میرا معمول ہے. تو 3 اور ایک 4 بھی ایکسٹرا میرے پاس رکھی ہے آج کل. تو یوں مطلب یہ کہ گھنٹیاں بھی لگاتا ہوں، یہ بھی لگاتا ہوں، تو کوئی تو جگہ دے گا. کیونکہ یہ گھڑیوں کا بھی ہوتا ہے، اچانک سیل جو ہے نا وہ ویک ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. پھر سفر پہ جب جاتا ہوں نا تو میں اپنے گھڑی کے سیل جو ہے نا یہ ہٹا دیتا ہوں اس سے، ورنہ یہ سیل لگا رہے، گھڑی تو چلتی رہے گی، سیل آپ کو آنے کے بعد آپ کو شاید کارآمد نہ رہے. کارآمد نہ رہے تو اتنے مہنگے نہیں ہیں، پیسے ہیں اپنے بدلے لیں گے، لیکن بس یہ اسراف میں نہ جائے، فضول ضائع نہ ہو. یہ میری ایک کوالٹی ہے. آپ نے کئی بار نوٹ کیا ہو شاید کہ پیالہ پانی کا پینے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر پیتا ہوں. اس میں ہوا نہیں پیتا میں، دیواروں سے اتر کر کوئی 1-2 قطرے جمع ہو جاتے ہیں اس کے پیندے میں وہ پیتا ہوں، اور مجھے مزہ نہیں آتا. کبھی کبھی ایسے بھی مطلب خیال آتی ہے کہ یار یہ پڑے پڑے جو پانی سوکھ جاتا ہے یہ بھی ضائع ہو رہا ہے اندر ہی اچھا ہے. تو اچھا ہے اس کا استعمال ہو جائے. کوئی خالی سوکھے گا تو گیا. حقیقت میں سوکھنا بھی ضائع نہیں ہے. اگر اس کی ڈیپلی جاتے ہیں نا
तो जितना भी पानी है, लेकिन ज़ाया करना जायज़ नहीं है पानी को बिला वजह। अगरचे मतलब इसका साइकिलिंग है इसकी, ये पानी जिधर भी जाएगा, रंग में, चूने में, खाने में, सीवरेज में, जहाँ भी जाता नहीं, पानी घूमता 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 इसकी साइकिल घूमती रहती है। आखिरकार ये भाप बनता है। सूरज की तपिश सूखता है, इधर लग गया तो इधर से सूख जाएगा, तो इधर चिपक जाएगा, उधर सूखेगा, आखिर वो धमाले करता हुआ घूमता फिरता ये पहुंचता है बादलों में, फिर बारिश की सूरत में फिर वापस आ जाता है। चाहे कितना ही टाइम लगे, तो इन मानों कह रहा हूं कि एक कतरा भी पानी का जाया नहीं होता डीपली, मतलब। लेकिन ये कि हम जाया करेंगे तो गुनाहगार होंगे बिला वजह, ना हक। एक कतरा भी जाया करने की इजाजत हमको नहीं है। हमारे हाथ से तो निकल जाएगा ना, हमने जाया किया तो कब आकर बरसे पता ही नहीं है। पता हो तब भी इसकी इजाजत नहीं है, क्योंकि जो मैंने कहा कि जाया नहीं करना है तो वो भी अपनी जगह पर दुरुस्त। और ये घूम फिर कर आ जाता है, ये साइंस की थियरी जो है या तहकीक है, ये भी समझ में आती है कि पानी इन मानों कर जाया भी नहीं होता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अब अगर कोई ऐसा है कि जिसके पास 2-3 अलार्म नहीं है, जैसे एक अमीर सुन्नत फरमा रहे हैं, तो आपके मोबाइल में ही ऑप्शंस मौजूद हैं। 1 अलार्म, 2 अलार्म, 3 अलार्म, 4-4, 6-6 अलार्म आप एक साथ रख लें। हर 15-20 मिनट के फ़र्क से 15 मिनट के बाद, फिर एक 15 मिनट के बाद, या 5 मिनट के बाद, जैसा आप समझें। तो आप चाहें तो 12 अलार्म सेट कर लें अपने मोबाइल के अंदर, लेकिन वो मोबाइल फिर एक ही है। अगर वो मोबाइल की अगर बैटरी खत्म हो गई तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसमें तो देखो ये है ऑप्शन, जज्बे में कोई ऑप्शन नहीं है। मुसीबत ये है कि आँख खुलती है फिर बंदा सो जाता है। हाँ जी, अभी तो अजान हो रही ना फजर की, फिर देर है जमात में, फिर सो जाता है। ये मुसीबत है कि आँख खुलते ही अलर्ट हो जाए, बैठ जाए और एक्टिव हो जाए, बैठ जाए। इसमें अगर आप ये मशवरा देंगे कि ये जो मोबाइल है या जो भी अलार्म लगा रहे हैं उसको दूर रखें। होता ये कि करीब होता है ना, तो जैसे ही आँख खुलती है तो वो दबा दिया तो वो बंद हो गया और फिर दोबारा सो गए, फिर बचता है, फिर दबा दिया, फिर सो गए। वो दूर पड़ा होगा ना तो वो उठ के जाना पड़ेगा इसको बंद करने के लिए, वरना वो बचता ही रहेगा, बचता ही रहेगा, बचता रहेगा। यहाँ तो ये होता है कि 1 घंटी बचती और उसको दबा के बंद कर देते, बचता रहे, कान खाता रहेगा, गुस्सा कर उठेगा कि यार अब यार चुप कर, इसमें इसकी अपनी नींद भी चुप हो जाएगी। मगर ये क्या इसमें अगर ऐसा करता है, अगर कोई बराबर वो सोया हुआ है तो ओए चुप कर करके दबा दिया, तो ये भी एक नहीं ऑप्शन अच्छा है ये भी कि अगर ऐसा कमरे में आप एक ही हैं और कोई बाहर से आकर भी दबाएगा नहीं कि उसको तकलीफ नहीं होगी, तो ये भी सही है कि ये ऐसा चीखता रहे और हो भी 12 मिनट का 30 सेकंड वाला ना हो। इसमें ऑप्शन ये भी होते हैं कितनी देर तक इसको बजाना है, 12, 15, 25 मिनट वाला जो हो, या नेवर भी होता हो बाजों में, बचता ही रहे, बचता रहे जब तक कोई इसको बुझाए नहीं, यानी ऑफ ना करे। वल्लाह आलम ऑप्शन मुख्तलिफ होते होंगे इसमें। ऐसा हो कि वो बड़ा भी दूर हो, वो भी चिकम धाड़ वाला, आहिस्ता वाले भी सॉफ्ट भी होते हैं इसमें, पता ही ना चले। वैसे वो जोरदार, वैसे आवाज भी करात वाली हो, मजा ही ना आए, आदमी उठ जाए। तो ये अपना जज्बा वाला सब हो सकता है। जज्बा कम है तो ये उसको भी जाके बंद करेगा, फिर घड़ी देखेगा अभी तो 15 मिनट है यार, 5 मिनट थोड़ा और आराम कर लेता हूँ, फिर गया। एक वक्त तक हमने एक तहरीक चलाई थी चंद, लेकिन वो तहरीक तो क्या चली, मतलब ये कि आपको याद होगा आपकी आवाज़ हम रिकॉर्ड करके अलार्म में सेट करते थे। मुझे याद है मैंने भी ली थी, अब भी है। हाँ देखिए अब भी सुनिए किसी किसी के उसमें अपने जो करीब के हिस्सा है भाई। फजर में आप उठा देते, उठो जल्दी उठो, उठो था के ना, उठो था के ना, आपको बोला था मैंने। अल्लाह, वो भी खत्म हो गया अब तो, उसकी जरूरत शायद ना रही। ये नहीं था ना पहले व्हाट्सएप। वैसे कैसे आप उठाएं, अगर जैसे कि आप उसी को उठाना चाहें तो? कैसे उठाता था पहले तो, अगर अपने नहीं, अभी आप जैसे कि किसी को कमरे में दाखिल हुए, किसी के कमरे में आप दाखिल होते हैं, किसी को उठाते हैं आप फजर के लिए, या कि आप जनरल नमाज फजर के लिए नहीं,
किसी हाँ भी मैं नमाज उठाता हूँ नमाजों के लिए तो आप जैसे कि इस वक्त किसी कमरे में दाखिल हुए और कमरे में दाखिल होने के बाद कोई सोया हुआ है, नमाज का वक्त है, आप उसको उठा रहे हैं, आप कैसे उठाएंगे? मैंने वो स्टील की चम्मच रखी हुई है, बजाता हूँ जोर जोर से। ये अभी तो आप फिलहाल ये मतलब क्या करूँ यार, दरवाजे पर मारता, उसको नहीं मारता। अभी आप आवाज दरवाजे पर या जो भी कोई ऐसी चीज हो जैसे ये आवाज दे गया, बजाता हूँ। मिसाल के तौर पर आपको किसी को अपनी आवाज से उठाने से अपने फिर आवाज से भी उठाता हूँ, जैसे हम उठाते हमारे इस्लाम में फजर में उठा देता, नींद भी नींद होती है ना, फिर आवाजें भी देनी पड़ती है। कैसे? यार ये ऐसा तो मत करो यार, आप किसी कुछ सोच के कर रहा हूँ ना, मौके की मुनासिबत से कभी नाम लेकर कभी कुछ। चलो प्यारे प्यारे इस्लामी भाई करके उठा दें, प्यारे प्यारे मीठे हुए तो ये माहौल में बोलते हैं। अब घर में एक ही फर्द को या दो फर्द हो, अब उनको मीठे मीठे प्यारे प्यारे बोलना क्या। अपने बच्चों को उठाता था शेर पढ़ के, हाजी रजाक को पढ़ता था मैं, वो अपने क्यों रजा, जब फजर के टाइम उठाने के लिए, क्यों रजा आज गली सुनी है, वो तरन्नुम से भी जैसा मौका, क्यों रजा आज गली सुनी है, क्यों रजा आज, क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले, उठ मेरे धूम मचाने वाले। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी इसने धूमें मचानी शुरू तो कर दी है, निश्चित मार्ग में किसी धूम मची दी, बाहर मुल्कों में भी जाते हैं धूम मचाने के लिए सुन्नतों की। अभी बांग्लादेश में माशाल्लाह मिलाद पाक बांग्लादेश में मरहबा की धूमें मचा ले गए हुए, ये धूमें भी हमारा खूब इस्तिलाह बन गई है। एक बार एक इस्लामी भाई जश्न विलादत के दिन थे, तालिब इल्म थे, मुझसे मिले, मैं शहर पे जा रहा हूँ तो यानी यहाँ नहीं करूँगा, जश्न विलादत या खबर नहीं सुन्नत है। अब ये कुछ कहा इन्होंने तो उसमें यही कि मैं जा रहा हूँ अपने गाँव, वहाँ जैसे माँ जश्न विलादत की धुएं मचाने जा रहा हूँ। ये अपने मुंह से यूं बोले तो जरा ये मुझे भी अजीब लगा, तो मुझे याद रह गया। अब वो धुएं मचाते मचाते दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का हिस्सा बन गए, तालिब इल्म थे, पढ़ते पढ़ते आगे बढ़े। अब इस वक्त क्या इनका मनसब है ये याद नहीं है, लेकिन दारुल इफ्ता का हिस्सा बन गए, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत सही थे। दे ये धूमें है ना, धूम मचे तो फिर इसमें जो 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 अपनी किस्मत में उसके मच जाए धूम। फरमाने गौस से ये शेर भी कभी कभी, हाँ, अरे ओ सोने वाले दिल, अरे ओ सोने वाले दिल, सहर है जाग गाफिल देख तो आलम मुनव्वर है। अपने बच्चों को सुना हो कभी, याद नहीं है मुझे, लेकिन ये कि ये भी कभी कभी उठाने के लिए शायद मैंने पढ़े है ना। कुछ ऐसा भी है कुमकुम या हबीबी कम तनामु करके भी कभी उठाने का होता था? मैंने किया है। अच्छा, पहले तो फैजान मदीना में कोई सिक्योरिटी इशू था नहीं, अब तो मैं क्या करूं, जमात से नमाज भी पढ़ने के लिए, पहले जमात से नमाज की इतनी पक्की आदत थी, या मकान लिया पीर कॉलोनी में सिर्फ फैजान मदीना को आबाद करने की नीयत से, अल्हम्दुलिल्लाह कभी मेरी जमात नहीं जाती थी, कभी भी नहीं, सही बोलता हूँ। एक बार मैं वुजू करके उठा नमाज के लिए आने के लिए, और बस कोई ऐसा उज़्र पेश आया शरई कि मुझे दोबारा मतलब वुजू करने की सूरत बनी और मैं लेट, तो जमात यहाँ कर ली गई, वरना मैं यहाँ होते हुए जमात नहीं छोड़ता था अल्हम्दुलिल्लाह। और फजर की नमाज के लिए आता था तो सदाए मदीना लगाता हुआ आता था, पहले सदाए मदीना बोलते थे, फजर के लिए जगाता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और सारे मेरे धंधे बंद हो गए यार,
वो सिक्योरिटी और फिर ये शोहरत, अब शोहरत इतनी होगी कि अब मैं सदा मदीना है नमाज के लिए उठाऊंगा तो उठकर भाग भाग के आके लिपट जाएंगे तो मोहब्बत में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो जो भी फजर के लिए नमाज के लिए मस्जिद में जाते हैं सबको जाना चाहिए। तो अगर बाकायदा वो उठाने का कोई सिस्टम नहीं भी कर पाते तो जाते जाते दो चार आवाजें लगा दिया करो यार, शर्माओ नहीं यार। यानी जो नेकी की दावत दे, अजान दे या नेकी का काम करे, नमाज के लिए आवाज दे, इसमें शर्म आती है। तो जो देता है वो क्या, इसका उलट इसको शर्म नहीं आती। लफ्ज़ बे लगा कर तो नहीं बोलूंगा ना मैं, ये भी हो जाएगा। यार कि आप मतलब शर्माते क्यों यार? लोग गालियां बकते हुए नहीं शर्माते यार, आप अल्लाह का नाम लेते हुए शर्माते। फजर के लिए उठाया करो। हर एक अपनी मस्जिद की तरफ जाते 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 2 बार 3 बार 5 बार 7 बार मौके की मुनासबत से आवाज लगा दिया करो। घर में भी उठाया करें प्यारे इस्लामी भाइयों, घर में भी, हाँ, ऐसा ना हो बाबू क्या वो जैसे घर में उठे और आयशा से जैसे कि बाथरूम में गए, आयशा से वजू किया, आयशा से दरवाजा बंद किया, कोई उठ ना जाए ए भाई बाद घर में सब माहौल होता होगा। अल्लाह कि वो हम तो अपना किया कर, हमको नहीं छेड़, आप अपनी खबर में तुम जाओगे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ऐसे खर दिमाग होते हैं। एक वाकया में नहीं भूलता, एक नौजवान दावत इस्लामी पता नहीं बनी थी या नहीं बनी थी, शायद नहीं बनी थी दावत इस्लामी, लेकिन मेरी लाइन तो यही थे ना अल्हम्दुलिल्लाह। जब से दाढ़ी आई मैंने रख ली अल्हम्दुलिल्लाह, और जहन मजहबी मेरा, इमामत और मस्जिदें और ये अपनी दौड़ मस्जिद तक अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक लड़का आना जाना शुरू हुआ, माशाल्लाह बड़ा नेक बच्चा था, तो रोजे भी रखने लगा। अब मुझे उसने बताया कि हमारे घर में तो रोजे का माहौल ही नहीं है, रमजान ही नहीं है जैसे, तो खाते पीते। तो मुझे साहरी भी कोई नहीं देता, मैं उठता हूँ तो मुझे बोलते थे बत्ती नहीं जलाना, हमारी नींद खराब नहीं करना। बोला मैं अंधेरे में जो हाथ में आया वो खा के मैं सहरी करके रोजा रखता हूँ। अच्छा घराना वो हाई फाई घराना नहीं, तो फ्लैट में रहते होंगे मतलब, और मेमन हमारी बिरादरी का बच्चा था। हैरत है मुझे यार, ऐसे ऐसे घराने हैं कि खुद रोजा नहीं रखना है लेकिन बच्चे को भी रोजा रखने में कोई ताउन नहीं है कि बत्ती भी मत जलाना। अब पता नहीं इनके माँ बाप हयात भी है या नहीं है, वो खुद बेचारा हयात है कि नहीं है, बरसों से देखा नहीं है। मेरे सिक्योरिटी के इशू की वजह से मेरे बहुत पुराने दोस्त मुझसे बिछड़ गए। वो बेचारा आना चाहते भी होंगे लेकिन कोई रास्ता नहीं सोचता होगा ये कैसे पहुंचे। अल्लाह पाक सबको सलामत रखने, उससे मैं बहुत मुतासिर था यार, इसकी वाकई कुर्बानी है। हम लोग तो यार तैयार पराठे, मलाई, आमलेट, अंडा आमलेट सब मिलता है यार घर में। एक मिसाल है, आपको सब मिलता है लेकिन सुस्ती होती है। और ये कैसा चुस्त बच्चा था कि इस तरह मतलब अंधेरे में सैरी करता था खुद अपनी लेकर। उम्र भी ज्यादा नहीं थी उसकी कि कोई मतलब अधेड़ उम्र का हो या कोई बड़ा जवान हो, समझे, कमाल है यार। ये बस अपना अपना हिस्सा है, किसी की जागीर नहीं है। तकवा, परहेजगारी, इश्क अपना अपना हिस्सा जिसको अल्लाह पाक अता कर दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सूरतुल कहफ की आखिरी 4 आयतें, इसकी फजीलत यह है कि अगर रात में या सुबह जिस वक्त, रात में या सुबह जिस वक्त जागने की नीयत से पढ़ें आंख खुलेगी इंशाअल्लाहुल करीम। ये सूरह कहफ मशहूर है, इसकी 4 आखिरी आयतें, इसको देख लीजिए, इसको पढ़िए। फिर ये कि उठने के लिए ये भी, ये जहाँ उठने की बात होती वहाँ इसको एडजस्ट कर लीजिएगा कि कोई जगाने वाला हो, कोई काबिल एतमाद, आला हज़रत ने फरमाया कोई काबिल एतमाद शख्स हो तो उसको बोल दे कि वो आपको जगा दिया करे। ये भी एक सूरत है कि आँख नहीं खुलती तो खाना कम खाए कि ज़्यादा खाने से नींद ज़्यादा आती है। तो इसके बावजूद अगर आंख नहीं खुलती, सारे ये करके आला ने जो बताया कि फिर भी नहीं खुलती, तो अब ये माजूर है, अब गुनाहगार नहीं हुआ अगर आंख नहीं खुलती तो। वरना ये सारा कुछ करता नहीं है, आधी रात तक हो करता है और फिर मुंदा बड़ा रहता है, फजर में आंख नहीं खुलती, ये कोई बात हुई। हजरत हाफिज मिल्लत
अल्लामा अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, ये बड़ी अनोखी बात इन्होंने की है। फरमाते हैं कि आपने मीलाद शरीफ के एक जलसे में नमाज की अहमियत और फर्जियत का बयान करते हुए फजर के वक्त नींद से आंख न खुलने की उमूमी जो मजबूरी बयान की जाती है उसको पेश करके फरमाया, बताओ ऐसा इंसान जो कई रातों का जगा हुआ, थका हुआ, हारा हुआ, जगा हुआ, थका हारा हुआ, किसी अच्छे से कमरे में उसके लिए अच्छे से अच्छा आरामदेह बिस्तर लगा हुआ हो और हर तरह के आराम का सामान उसको मुहैया कर दो, जैसे एसी, पंखा, जो भी यानी कि तरकीब है, शोर शराबा कुछ नहीं, पुरसुकून कमरा हो, सोने की हर रिक्वायरमेंट उसकी पूरी हो। अब उस थके हारे इंसान से जो कई रात का जगा हुआ है, थकन से चूर चूर है, नींद से मखमूर है, तो खैर उस इंसान से उस कमरे में सोने के लिए कह दो और साथ में ये भी कह दो कि हाँ ये ख्याल रखना कमरे में एक सांप रहता है। तो बताओ उस थके मांदे कई रातों के जगे हुए इंसान को उस आरामदेह कमरे में नींद आएगी? मजमे में से किसी ने कहा नहीं। तो फरमाया क्यों नींद नहीं आएगी? इसीलिए कि इस इंसान के दिल में सांप का डर समा गया, सांप का खौफ पैदा हो गया, तो अब उसकी नींद गायब हो गई। जब सांप के खौफ से नींद उड़ सकती है तो खुदा का खौफ दिल में हो और नमाज के वक्त नींद आ जाए, ये कैसे हो सकता है? कमाल की बात कर दी इन्होंने। हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह बहुत अच्छे बुजुर्ग हुए, बहुत बड़े आलिम मुहद्दिस थे और मुबारकपुर शरीफ, ये मुबारकपुरी भी कहलाते हैं, हाफिज मिल्लत। इनका मैंने जिक्र खैर तो दावत इस्लामी से पहले से सुना हुआ है, अच्छे बुजुर्ग थे ये रहमतुल्लाह ताला अलैह। जामिया अशरफिया के बानी भी है, बानियों में से शायद ये बानी है, जामिया अशरफिया मुबारकपुर शरीफ के बानी है ये। मुफ्ती शरीफ उल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह के भी उस्तादों में से है। हमको इनके वाक़यात हज़रत मौलाना कारी मुस्लिहुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह सुनाते थे, क्योंकि कारी साहब भी कहते थे हमारे उस्ताद नहीं है हाफिज मिल्लत। पहले सबसे पहले इन्हीं से मैंने तस्करे सुने थे, अब तो खैर मुताला थोड़ा बहुत हुआ और पता चला। हाँ है ना, मैंने इसके हवाले डाले आशिकान नमाज। ये आशिकान नमाज की 86 हिकायात में है और आशिकान नमाज की 86 हिकायात ये फैजान नमाज ही में एक बाब है समझो। तो ये वाक़या उसी से है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब तो मेरा ख्याल है फाइनल है कि मेरा ख्याल है लफ्ज़ वापस ले लेता हूँ, मुझे भरोसा नहीं है, कौम नहीं मानती यार। अब यानी कि इसको फाइनल बना लो। अब सांप के डर से जाग सकते हैं तो अल्लाह के खौफ से क्यों नहीं जाग सकते? तो फजर क्यों जाए अपनी? तो खलास फाइनल डिसीजन ले लो कि अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरी कोई नमाज कज़ा ना हो, चाहे कितनी थकन हो, नमाज कज़ा ना हो और जमात भी ना छूटे। जमात भी वाजिब है, कोई शरई मजबूरी ना हो जब तक जमात ना छूटे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक इस्लाम भाई के गले में बिल्कुल ये फंदे की तरह चादर है। तो मैं अब सोचा था मैं कुछ मदनी फूल दूं, लेकिन उस वक्त मुमकिन नहीं था मेरे लिए। जब हम जुलूस मिलाद में थे उस वक्त एक दीवानों का हुजूम होता था, वो लपकते थे और खादिमीन इनको हटाते थे और ये भी एक जुलूस का हिस्सा होता है। तो इसमें बाद ईसाई भाइयों के ये चादरें यूं थी क्या? यार अब मैं इनको समझा तो नहीं सकता था, मेरा वो साउंड प्रूफ और क्या बोलते बुलेट प्रूफ कांच खुलता भी नहीं है, ना समझाने का मौका, वो चीखम धाड़ चारों तरफ होती होगी तो इतना आवाज अंदर नहीं आती गाड़ी में। लेकिन मुझे इस तरफ ख्याल गया, एक बार बहुत साल हो गए तो किसी शहर में मेरे साथ ये हादसा हुआ, तो मेरे भी गले में चादर थी और रश बहुत, मुझे पर रश बहुत था। मुझे निकल कर मस्जिद में जाना था अंदर,
और इसमें मेरी चादर के सिरे जो थे ये किस तरह पता नहीं लिपट गए गले में, कोई इधर से खींच गया उधर फंस गया और मेरा जैसे दम घुटने लगा, मैं यूं होने लगा। फिर इस तरह भाइयों ने मुझे संभाल लिया और जूतों छुड़ा के लिया है, तो अल्लाह ने बचा लिया। इस दम घुट गया भीड़ में, तो इसलिए मुझे डर लग रहा था कि यार कहीं ये बेचारे इतने दीवानगी में मुझ पर लपक रहे हैं, ये पहली सफ वाले, तो ये कहीं बेचारों की कोई चादर कहीं फंस गई, खींच गई, या खातिम ने खींच लिया, किसी ने खींच लिया, तो गला ना घुट जाए और शोर में समझ भी ना पड़े इतनी आवाज। तो इसलिए वो ऐसे मौके पर चादर यूं जिस तरह अभी लपेटी है ना, मैं खुद अगर बाजों ने देखा हो रमजान करीम में जब सहरी वगैरह में नहीं, सहरी के बाद में जब ईदी या कोई तोहफे बांटता था तो मैं ये चादर हटा देता था कि वो मुझे अपने हिफाजत उम्र वाले ही ने मशवरा दिया, हटा दो, समझ में आ गया मेरे, मैं हटा देता था कि यार कहीं हल्ला गुल्ला हुआ, भाग दौड़ हुई, या खुदा न खासा कोई दुश्मनों ने प्लानिंग की तो ऐसा ना हो कि कोई एक इधर से पकड़े एक इधर से पकड़े तो गोली की जरूरत ही ना पड़े, अल्लाह ना करे। खैर चारों तरफ पहरा था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहरहाल चोर की 14 नजरें, हिफाजत की कोशिश करनी चाहिए। तो ये बस जुलूस में ये मुझे यूँ लग रहा था कि यार अल्लाह ना करे को भगदड़ हुई, भगदड़ तो मच सकती है, होती है, अब भी इत्तला मिलेगी कुछ, अल्लाह करे कुछ ना हुआ वरना इत्तला मिल जाती। अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत के साथ हमारे जुलूस मिलाद अभी तक कोई इत्तला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, शर की मुझे नहीं है। तो ये कि भागदड़ होगी ना तो फिर बेख्याली में किसी की चादर आ जाए और यूं बेचारे शहादत का जाम पी लें। अभी इनको बहुत काम करना है दावत इस्लामी का, तो मैं सोचा था मैं समझाऊंगा, लाइव समझाते हुए डर भी लग रहा था और लोग क्या समझेंगे, इन्होंने जुलूस और ये अंदाज देखे नहीं है दीवानों के। खैर इंशाअल्लाह फफहम, बस समझो और गौर करो। अल्लाह आप सबकी हिफाजत करे, आपके सदके मेरी भी हिफाजत फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर हाफिज़ मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह का मुख्तसर तारुफ और आपकी खिदमात के हवाले से मकतबतुल मदीना का रिसाला शान हाफिज़ मिल्लत, इसके 80 सफ़हात हैं और 12 रुपये कीमत पर आप मकतबतुल मदीना से आप कीमतन हासिल भी कर सकते हैं और दावत इस्लामी की वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, 80 पेज और सिर्फ 12 रुपये हदिया, सिर्फ 12 रुपीज़। सुभान अल्लाह, 12 रुपये। भूल हो गई होगी, 17 सफ़हात हैं बता रहे हैं, 17। थकन, कल की रात की थकन, सुबह 12 की थकन, जुलूस से मिलाद की थकन नहीं होवे। मतलब फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने ये दुआ 3 मरतबा पढ़ी तो गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलके पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। फरमाने गौसे पाक, दुनिया की रौनकें और आसाइशें धोखा देने वाली हैं, जिसने इन्हें पाया धोखा खाया और गाफिल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे में अमीर अहले सुन्नत हमें अपना मुरीद बनाते हैं और जो अमीर अहले सुन्नत का मुरीद बनता है वो गौस पाक का मुरीद बन जाता है। तो जो इस्लामी बहनें सोशल मीडिया मदनी चैनल के ज़रिए शामिल हैं वो भी बेअत हो सकती हैं। अपने बच्चों के नाम, नंबर, उम्र, एड्रेस इस एड्रेस पर भेज दीजिए जो स्क्रीन पर चल रहा है
تو آپ کے بچوں کو بھی امیر علیہ سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں مرید کر لیا جائے گا. جو کسی اور پیر صاحب سے مرید ہیں وہ بھی بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں، یعنی طالب ہو سکتے ہیں. امیر علیہ سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں. اس کا فائدہ یہ ہوگا اپنے پیر سے ہی مرید رہیں گے، امیر علیہ سنت کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. تو امیر علیہ سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں آپ سے مرید یا طالب ہونا چاہتے ہیں انہیں اپنا مرید یا طالب کر لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. یہ سوال پوچھنے والے سوال پوچھ رہے ہیں کہ نقش نالین پاک یہ مختلف طرح سے جو ہے وہ ملتا ہے. بعض اوقات جو ہے یہ گتے یا کاغذ سے بنا ہوا ہوتا ہے، ہارڈ کاپی کی صورت میں ہوتا ہے، اور ایک وہ ہے جو کپڑے پر لگایا جاتا ہے. تو یہ جو نقش نالے پاک کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں تو یہ کس والے کے فضائل ہیں؟ گتے کے ذریعے جو بن رہا ہے اس کے فضائل ہیں، یا جو دیگر صورتوں میں بنا ہوا ہے اس کے فضائل ہیں؟ کس کے فضائل؟ اصل فضیلت اوریجنل کے، اوریجنل عکس یعنی کہ تمثال، یہ نقش جو ہے نا یہ اوریجنل نالے پاک سے لیا گیا ہو. اب یہ بازار میں جو ہم یہی لگا رہے ہیں اوریجنل کی طرح کا لائے کہاں سے؟ یہ مطلب حضرت علامہ تلمسانی، امام تلمسانی رحمت اللہ علیہ، ان کی سب سے بہترین کتاب اب تک، یعنی کہ دوسری کتابیں انہی کی کتابوں سے نکالی جاتی، زیادہ ضخیم نہیں ہے. وہ فتح المتعال، تو یہ کتاب جو ہے فتح المتعال یہ بہت اہم کتاب ہے. اس میں نے پڑھا تھا کہ ایک نقشہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے، یعنی کہ جیسے کہ وہ سفر اور یہ جد و جہد کہ اصل نقش کی کاپی مل جائے. بعض جگہ اصل نقش کی کاپی ہے. میرے پاس عرب کے شیخ پچھلے دنوں تشریف لائے تھے غریب خانے پر. انہوں نے مطلب مجھے بتایا اور کس طرح تفصیل بتائی کہ یہ اوریجنل نقش نالے پاک کے. میں نے لیے سر پر رکھے اور رقت طاری ہو گئی. اتنے مطلب میں نے لگا کے رکھے ہیں جنت عالم میں، لیکن وہ لوگوں کو سمجھ نہیں پڑے گی. تو میں نے آج بولا تو بات پہ بات نکلی تو وہ مطلب اوریجنل تصور بنتا ہے. تو اب اس کا پتہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اوریجنل ہے ہی نہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو چیز منسوب کی جائے اس میں ہمارے محتاطین جو علماء گزرے بڑی احتیاطیں کی انہوں نے. یہ سرکار کا ہے. اب ہے یا نہیں ہے یہ کیسے پتا چلے؟ تو اس کی تحقیقات اسناد نہیں، اس کی توہین نہیں کی جائے گی معاذ اللہ. اللہ کرے گا اس کی برکتیں ملیں گی. میں بھی لگاتا ہوں
लेकिन ये कि जो अर्ज करना था किया मैंने। उन्होंने बड़ी इसमें वो लिखा और इन्होंने अपनी किताब में कोई शायद 3 की तस्वीर दी है, 8 की दी है, 8 के नक्श। अच्छा हमें भूल गया तादाद, तो उसमें ये नक्श दिए ओरिजिनल के। तो अब ये जो बनाने वाले जो हैं, अल्लाह इनको तौफीक दे कि ये उससे अपना जो बनाते हैं ना, इसकी मैचिंग कर लें, ये हो सकता है। या इसी को जो ओरिजिनल है कि इसको नीचे कोई कागज रखकर या इस तरह इस पर कलम चला के या कोई इस तरह नक्श बनाए, तो वो अपनी जगह उसकी बरकत के वो अपने हाथ से बनाए, कलम से। तो ये अपनी जगह पर ये भी हो सकता है कि उसी का, ये भी हो सकता है ना, मोबाइल से उसकी तस्वीर बना ले, तो वो भी उम्मीद है कि वो सेम आ जाए। अच्छी तरह जानता हो बनाना कि बिल्कुल परफेक्ट बनाए, वरना अपना कैमरा आड़ा तिरछा हुआ, हिलता हुआ, तो हो सकता है कुछ फर्क आ जाए इसमें। फिर ये इस तरह करके इसकी मतलब यानी कि वो ओरिजिनल के जरिए फिर ये अपने ये नक्श बनाए। हो सकता है करते भी होंगे इस तरह कि एक चीज सरकार की तरफ मंसूब करते हैं, तो फिर इसमें ये वैसी की बात कर रहा था, ये कहाँ से आ गए, मेरे घर के ही हैं ये, तो आपने ले लिया था ये। अल्लाह अकबर। ये वो अरब साहिबान, अरब के शयूख कभी कभी तशरीफ लाते हैं ना पाकिस्तान, हमारी दावत पर आते हैं, दावत इस्लामी दावत पर, और अपने साईं भाई लाते हैं इनको। उनमें से थे, बड़े अच्छे लोग थे। मैं तो अच्छे ही कहूँगा, ज़ाहिर है हमारे हम मसलक, हम मशरब, हम अकीदा और आशिकान रसूल। ये तो आशिक रसूल ही ये मतलब इसकी कदर करेगा और समझेगा इसको। तो ये है, चाहो तो इसको देख लो और इसकी जेरोक्स बना ले, और इसी से अगर चाहे तो नक्श बनाए। एक मशवरा है। अब ये कि वो पुरानी डाई बनी हुई है, ये तो सब कुर्बानी देनी, कमाया भी तो बहुत होगा यार। ये तो सीजन है आजकल, तो लाखों लाख रुपए कमा लिए होंगे। स्क्रीन से स्क्रीन शॉट ले लें इसका, जिनको चाहिए। पूरी फ्रेम इसमें ये नजर आ रही है, तो लिखा हुआ भी है इसमें। भले आप लिखा हुआ शामिल ना रखें, अपने हिसाब से मतलब बनाए इसको। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आ गए सरकार, नबियों के सरदार, मालिक व मुख्तार, सबके हैं हम खार, सबके हैं हम। मरहबा 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 या मुस्तफा, मरहबा 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 या मुस्तफा। तमाम आशिकान रसूल को जश्न ईद मिलाद नबी मुबारक हो और सुबह बहारा मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबको मीठा मीठा अच्छा प्यारा मक्का मदीना दिखाए। आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा। बड़ा रबी अव्वल मुबारक हो। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, आपको रबीउल अव्वल शरीफ की बहुत बहुत मुबारक हो। हज़रत फातिमा ख़ज़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि मैं उहद के मैदान के सामने से गुजर रही थी। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो की कब्र के पास पहुंची तो मैंने अर्ज किया, अस्सलामु अलैका या अम्मा रसूलिल्लाह। तो मेरे कान में आवाज आई, वालैकुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो रहम नहीं करता उस पर भी रहम नहीं किया जाता। सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, मरहबा या मुस्तफा, 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 मरहबा या
मुस्तफा मरहबा या मुस्तफ़ा मरहबा या मुस्तफ़ा हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। आज जुलूस मिलाद में तवज्जो गई मेरी, वो जिसको देखो ये अपने पेज पे लाइव चल रहे होंगे, भाग भाग के। अब ये मोबाइल को संभाले या झंडे को संभाले? झंडा माइनस हो गया, मोबाइल हाथ में। ये मैंने अंदाज लगा कि झंडे कम थे, किसी किसी के हाथ में थे, मोबाइल ज्यादा थे, कई गुना ज्यादा थे। मैंने कहा यार ये तो भारी हुआ कि मोबाइल ने हमारे झंडे वापस ले लिए, तुम संभालो, अब ये संभाले। तो शायद एक तादाद है कि अब झंडे नहीं उठाती, या मोबाइल की जरूरत पड़ती रहती ना बनाने की, तो कहाँ रखेंगे। चलो सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक इन सबको बामुल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। सबको बार बार माँ बाप और खानदान समेत हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखाए। आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इस क्लिप की वीडियो और ऑडियो AI जनरेटेड है। भाई जरा एहतियात से लाइटें उतारना, खराब ना हो, इंशाअल्लाह अगले साल फिर काम आएंगी। दादा जान, ये झंडियाँ भी उतार ली हैं। शाबाश बेटा, इन झंडियों को भी एहतियात से तह करके रख दें ताकि खराब ना हो। अरे वसीम साहब, ये हैदर रजा साहब ने सारी सजावट क्यों उतार दी? अभी तो रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। आज तो 13 रबीउल अव्वल है, इतनी जल्दी चरागां खत्म क्यों कर दिया? चलिए उन्हीं से पूछते हैं। दादा जान, कोई दरवाजे पर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे वसीम साहब, आजम साहब, खैरियत? सुबह सुबह कैसे आना हुआ? हैदर रजा साहब, हमने देखा कि आपने चरागां उतार दिया, झंडियां भी समेट ली। हम तो हैरान हो गए कि इतनी जल्दी क्यों? जी भाई, सजावट तो इसीलिए एहतियात से उतार रहे हैं कि इसे संभाल कर रख दें, इंशाअल्लाह अगले साल फिर इस्तेमाल कर लेंगे। अरे हैदर रजा साहब, अगले साल नहीं ले लेंगे ना? ऐसी खुशी के मौके पर जितना खर्च करें कम है। जी बिल्कुल, और ये कोई फजूल खर्ची थोड़ी है, आखिर जश्न मिलाद की खुशी है। दादा जान, पिछले साल गली के कोने पर जो सजावट की गई थी वो कई दिन तक वहीं रही, फिर बारिश और हवा से फट गईं, धागे निकल आए थे और कुछ झंडियां तो नीचे भी गिर गई थी। बात फजूल खर्ची की नहीं, मैं तो कहता हूँ कि जिस चीज को हम मोहब्बत और अकीदत से लगाते हैं, मकसद पूरा होने के बाद उसे बेतवज्जोही से नहीं छोड़ देना चाहिए। उसे एहतराम के साथ उतारें, साफ करें और महफूज जगह पर रखें। यूं चीज की बेअदबी भी नहीं होगी और अगले साल दोबारा इस्तेमाल भी हो सकेंगी। हैदर रजा साहब, सच कहूं तो मुझे भी यही एतराज रहता था। लोग बड़े शौक से झंडियां और सजावट लगा देते हैं, लेकिन बाद में कई जगह वो फटी हुई, मैली या जमीन पर पड़ी नजर आती हैं। ये मंजर मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज आपको ये सब चीजें इतने एहतराम और एहतियात से समेटते देखा तो बहुत अच्छा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमें तो अमीर अहले सुन्नत ने मोहब्बत रसूल में सिर्फ खुशी मनाना नहीं सिखाया, बल्कि अदब, एहतराम, सफाई और जिम्मेदारी भी सिखाई है। जश्न मनाएं, खूब खुशी मनाएं, लेकिन जिस चीज को इस मुबारक निस्बत के लिए इस्तेमाल किया है, बाद में इसका एहतराम भी मलहूज रखें। हैदर रजा साहब, बात तो आपकी अच्छी है, लेकिन एक बात अब भी मेरी समझ में पूरी तरह नहीं आई। अगर हम जश्न मिलाद पर ज्यादा खर्च करें और हर साल नई सजावट करें तो क्या ये गलत होगा? और पुरानी सजावट को फौरन उतार देना बेहतर है या कुछ दिन लगा रहने देना चाहिए? हैदर रजा साहब, सच कहूं तो
मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हमने तो आप ही से सीखा था कि जश्न विलादत कैसे मनाना है, खुशी कैसे करनी है, चरागा कैसे करना है, और आप ही तो हमें समझाते रहे हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी तो पूरा साल मनाई जा सकती है। अभी तो हमें बड़ा मजा आ रहा था, घर भी कितना खूबसूरत लग रहा था। आपने तो रबीउल अव्वल का पूरा महीना भी इंतजार नहीं किया, बस 12 दिन पूरे हुए और 13वें रबीउल अव्वल की सुबह ही सारी लाइटें और झंडियां उतारना शुरू कर दी। ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आई हैदर रजा साहब। जब खुशी पूरा साल मनाई जा सकती है तो फिर ये चरागा इतनी जल्दी खत्म करने की क्या जरूरत थी? वसीम साहब और आजम साहब, आपके इन सवालात के बारे में हम अमीर अहले सुन्नत ही से जान लेते हैं। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, इस सिचुएशन और ऐसे मौके पर हमें क्या करना चाहिए, और अगर कोई ऐसे ही सवालात करे तो हमें क्या रिएक्ट करना चाहिए? माशाअल्लाह, हैदर रजा ने बातें जो की वो बहुत अच्छी की, और इन्होंने जो उतार लिया वो भी सही किया। अब वो जो सारा साल मनाना चाहिए तो खाली चरागा करना ही तो मनाना नहीं है ना, चरागा झंडे लहराना। ये पहले हम भी एक पूरे महीने झंडे का कहते थे लगा रहे, लेकिन बाद में जब मैंने देखा ना फिर लोगों की दिलचस्पी नहीं रहती। 12 दिन दिलचस्पी होती है, इसके बाद कोई आंख उठा के देखता भी नहीं ना। ये रोशनी जगमग जगमग आप रोज करें, कोई देखेगा भी नहीं इसकी तरफ। तो एक तो ये, तो अब जब ये किसी मकसद का ना रहा कि लोग अब इसको देखते नहीं है, भाई 12 दिन या 12 रबीउल अव्वल हो गई खलास, तो इसलिए हमने मशवरा दिया कि 12 दिन जब पूरे हो जाए तो इसको आप उतार लें जल्दी जल्दी, ताकि आइंदा साल आपको काम भी आए और फट कर या जमीन पर आकर कोई इसकी बेअदबी वाली सूरतें भी ना पेश आए। तो इसलिए वो उतार लेना ही अनसब है। एक जब टाइम पूरा हो गया तो उतार ले, तो दुनिया का भी दस्तूर है, शादियां होती है, खुशियां होती है, लोग जब ये पूरा हो जाता है तो उतार लेते हैं, अपनी जो भी डेकोरेशन करते हैं सब समेट लेते हैं। इसलिए समेट लेने का मशवरा है, किसी अगर कोई मकसद नहीं है। हाँ, जब आप कोई वाकई ऐसा आपका इवेंट आया, मिलाद शरीफ कर रहे हैं आप, तो उसमें भले लगाएं। इसलिए सारे जिन्होंने लगाए हुए झंडे वगैरह वो अब उतारना शुरू कर दें और लाइटिंग भी समेटना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह ये, और हिफाजत से रखना, इधर डाल दिया उधर डाल दिया, फिर नए साल पैसे ज्यादा हैं तो खरीद लिए, तो ये सही नहीं है। तो ज़ाया ना करें, जब तक काम की चीज़ है आप इसको इस्तेमाल करें। और जो लाइटिंग करते हैं वो संभाल के रखते भी हैं माशाल्लाह। आमतौर पे झंडों की तो कम परवाह करते हैं, लगे रहते हैं, लहराते रहते हैं, बारिश, तूफान, गर्मी वगैरह वगैरह। इसलिए वो दूसरे साल तो हाथ में ही नहीं आएंगे जो काम देंगे आपको। इनकी हिफाजत करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आ गए मुस्तफा मरहबा मरहबा, आए शाहे अंबिया मरहबा मरहबा, अहमदे मुजतबा मरहबा मरहबा, खुशियाँ मनाओ दोस्तों, मीलाद का दिन है, ऐसा प्यारा दिन है, खुशियाँ मनाओ दोस्तों, मीलाद का दिन है। अल्लाह 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 अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सीधी यूट्यूब चैनल पर एक सवाल ये मौसूल हुआ है, ये कह रहे हैं दुआ मांगते हुए दिल हाजिर ना हो, सिर्फ ज़बान से कलिमात अदा कर लिए जाएं, क्या दुआ कबूल होती है या नहीं? और दुआ में खुशू कैसे पैदा करें, इस हवाले से भी इरशाद फरमा दें। अल्लाह कबूल करने वाला है। बेदिली से दुआ मांगना मन्ना तो बड़ा नहीं है, हाँ नींद चढ़ी हो तो मना है। नहीं, वैसे रिवायत मौजूद है कि अल्लाह पाक कल्ब साही यानी जो भूला हुआ दिल है और तवज्जो नहीं है उसकी कबूल नहीं फरमाता दुआ, लेकिन ये आला हज़रत ने आदाब में फरमाया कि आदाब ये है कि तवज्जो हो, वरना अल्लाह पाक किसी भी सूरत में दुआ को कबूल फरमा लेता है। जी, अगर नहीं तवज्जो रहती तब भी दुआ मांगने से अपने आप को मतलब महरूम ना करें।
ये तो मतलब नमाज में कौन सा दिल लगता है, कौन सी तवज्जो रहती है? हम पढ़ते तो है ना, इंशाअल्लाह कभी दिल भी लग जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। नूर आ गया, जगते 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 सोना आया है, सबने जश्न मनाया है, लफ्ते जिगर अब्दुल्ला दा आमीना भी दा जाया है, सोना आया ईद दी वीद हो गई, सोना आया ईद दी वीद हो गई, सरकार दी आमद मरहबा, दिलदार दी आमद मरहबा, मंठार दी आमद मरहबा, आका दी आमद मरहबा, मक्की दी आमद मरहबा, मदनी दी आमद मरहबा, ज़ीशा दी आमद मरहबा, सुल्तान दी आमद मरहबा, सब झूम झूम के मरहबा, सब झूम झूम के मरहबा मरहबा। माशाअल्लाह, ये जुलूस था या क्या थे? ये कल रात नजर नहीं आ रहे थे। कल रात जो हमारा इज्तिमा मिला था ना, उसका ये ऊपर का एक मंजर था, ड्रोन शॉट कहलाता है ये। माशाअल्लाह। अब अगर जुलूस से मिलाद के भी कोई मिलादी परचम वाले हों तो दिखा दें फिर इसको हम आज। अभी मेरा ख्याल है कोशिश जारी है, हम थकी भी होगी ना, कोशिश जारी है इंशाल्लाह। 2-4 मिनटों में अल्लाह ने चाहा तो कोशिश करते हैं। अब यार हम तो भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेते हैं, थोड़ा दूर दूर के जुलूस भी देखते जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। सवाल चलाइए। हम भी देखें, बाहर मुल्कों वाले तो बेचारे तरसते होते होंगे, कहीं कहीं निकलते हैं जुलूस, लेकिन ज़रा वो जो यहाँ है कराची में खास कर, यहाँ के जुलूस का मुकाबला शायद कहीं भी नहीं होता होगा। यहाँ जज्बा जोश कराची का मक्का मदीना। इनका बस चले ना, अपने ऐलान करे ना कि पैदल बीबी आमिना घर कौन कौन आएगा, तो ये भी 2-2 हाथ उठा ले, उठा रहे हैं तो 2-2 हाथ उठा रहे, पैदल बीबी आमिना के घर यहाँ से 3 घंटे का अपना यहाँ। अच्छा, आप पैदल चलते 3 घंटे, सुभान अल्लाह। तो बीबी आमिना का घर तो मक्के शरीफ में, चलेंगे ना? हाँ, तस्वुर में जा सकते हैं आप, मगर खत चलो दिल तो बहलाने। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा सवाल ये है, अवामुन नास में पब्लिक प्लेसेस में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जो डबल मीनिंग हो, जो माना हो, जैसे कि लफ्ज़ रब, ये हमारे यहाँ खुसूसन अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके लुग़वी माना साहिब या फिर आका के भी हैं। इस तरह के अवामुन नास में अल्फाज इस्तेमाल करना कैसा, शरई हुक्म क्या होगा? शारे बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के फतवे से तो यही जाहिर है कि रब किसी बंदे को बोलना, ये हमारे यहाँ, ये अहले अरब की बात नहीं कर रहे, हमारे यहाँ उर्दू स्पीकिंग में ये अल्लाह के लिए मखसूस है, और किसी को रब नहीं बोलते। तो और किसी के लिए बोलेंगे तो ये कुफ्र है। इन्होंने तो यहाँ तक लिखा है कि रब किसी और लफ्ज़ के साथ मिला कर भी ये उर्दू में बोलना जायज़ नहीं है। जिससे बाज तो हैं मिसालें कि अब अरबी के अल्फाज यहाँ उर्दू में इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे कि रब्बुल माल, रब्बुद्दार, तो वो बहरहाल लेने के मुफ्ती शारे बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का फतवा इसमें वो। वैसे भी अरबी ज़बान में भी मुतलकन तो ममनू रब ही नहीं है, बोलते हैं, उसकी इजाज़त नहीं है, लफ्ज के साथ मिला वो इजाफत की सूरत में जब वाज़े होता है माना तो उसमें इजाज़त दी गई है। जी। और हमारे उर्दू में बस ये चंद एक ही लफ्ज़ रब्बुद्दार तो हमारे यहाँ वैसे भी मारूफ नहीं है, रब्बुल माल भी ये आम अवामुन नास में मारूफ नहीं है, फ़िक़ी इस्तिलाह के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो इस तरह के जो ज़ू माना तो उसको नहीं, मुश्तरक जो अल्फाज होते हैं, मुश्तरकुल मानी जो अल्फाज होते हैं, उसको यूँ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती। उसी का फिर नतीजा निकलता है कि फिर तरह तरह के एतराज़ात खड़े होते हैं, उसकी वजाहतें करना पड़ती हैं कि इसका ये माना बनेगा, इसका ये माना बनेगा। और बाज़ औक़ात तो ये वही जो मेरे सुन्नत ने फरमाया ना कि शारे बुखारी मुफ्ती शरीफुल अमजदी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो फतवा दिया है, ऐन उसके मुताबिक वो कुफ्र बन रहा होता है। इस अंदाज में बाज़ लोग उसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
अब जमा में बोले तो और बात है, अरबाब, अरबाब इख्तिदार ये हमारे हैं। तो हालांकि ये इख्तिदार वाले जमा होकर अरबाब बने। अच्छा, और ये अरब ममालिक में जो कफील होते हैं उसको भी गालिबन अरबाब बोलते हैं, है ना, अरबाब। तो ये सही है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मुबारक महीने रबीउल अव्वल में मकतबतुल मदीना पेश कर रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम की शान व अज़मत पर मुश्तमिल एक खूबसूरत किताब शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम पर 12 बयानात। ये किताब हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम की शान व अज़मत और सीरत तय्यबा पर मुश्तमिल शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास सत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुमुल आलिया के 12 बयानात का मजमुआ है। बयानात के मौज़ूआत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम का प्यारा बचपन, उम्मत से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम की मोहब्बत, हुस्न जमाल मुस्तफ़ा, अखलाक़ मुस्तफ़ा। हर बयान कुरान हदीस और मुस्तनद कुतुब के हवालों के साथ पेश किया गया है। 159 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब 200 रुपए में मकतबतुल मदीना से तलब फरमाएं। मेरा नाम अब्दुल माजिद है। मेरा ताल्लुक सिंध पुलिस कराची से है। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा सवाल है, इन दिनों हमारी ड्यूटी बहुत सख्त कर दी जाती है, चाहे वो बड़ी रात हो या जुलूस मिलाद हो। तो अमीर अहले सुन्नत ये बताइए कि हम अपने बच्चे घरों में छोड़कर आ जाते हैं और जुलूस मिलाद में उन बच्चों को शिरकत नहीं करवाते, ना ईद मिलादुल नबी में नया सूट पहन सकते हैं, हम वर्दी की हालत में पूरा दिन गुजारते हैं। तो हमारा ये कुर्बानी देना क्या बाइज़ सवाब बनेगा? बाइस उसूल माल तो है ही है, सवाब तो वो तो नियत, जैसे नियत और शरन दुरुस्त अगर ड्यूटी देता है, माँ की खिदमत, बाप की खिदमत, बाल बच्चों की परवरिश के लिए मैं रोजी कमाऊंगा, हलाल पूरी पूरी ड्यूटी देता हो, तो ये नियतें उसको सवाब दिलाएंगी। लेकिन ये कि इसमें 24 आवर्स तो ड्यूटी नहीं होती, जुलूस 24 आवर्स नहीं निकलते। ऐसे औकात है ना कि उनके औकात होते हैं, आराम की टाइमिंग होती है ना, मुख्तलिफ औकात में ये चाहें तो कपड़े पहन सकते हैं, नवाफिल पढ़ सकते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। ड्यूटी के दौरान ऐसी ड्यूटी नहीं है जो गफलत में ऐसा काम ना करे, तो दुरूद पाक पढ़ सकते हैं जिसने विलादत मनाने के लिए। रहा बच्चों को लाना, तो बच्चों को जुलूस में लाना तो मैं वैसे ही इससे डरता हूँ। अब मना नहीं कर पा रहा, मैं मना कैसे करूं, लेकिन कभी कभी शायद किया भी होगा मना। बच्चे बिल्कुल खुश होते हैं, होने चाहिए, अच्छे लगते हैं, झंडी उठाते हैं और नारे लगाते हैं बाज़-ओ-क़ात। लेकिन अगर खुदा न खाता कभी भगदड़ हुई, भगदड़ें मचती हैं, ये सबको पता है, तो ऐसी सूरत में बच्चे को संभालेंगे, अपनी जान को संभालेंगे। फिर खतरात, इसी तरह ऊँट घोड़े ले आते हैं लोग, खुदा ना खाता ऊँट बिदक गया, घोड़ा बिदक गया, तो यार होगा क्या, जानवर है। वैसे कोई शोर मचा या पब्लिक का हुजूम में आप ले आइए, हर घोड़ा हर ऊँट पब्लिक के हुजूम का आदी तो होता नहीं होगा। ये अगर बिदक गया, जैसे कुर्बानी के जानवर आपके सामने ये बिदक जाते हैं, तो बड़े जानवर खासकर फिर कैसा तबाही मचाते हैं, गाड़ी तोड़ देते हैं, तो बंदे को गिरा कर उसके ऊपर टांगे रख देते। ये मनाजिर सोशल मीडिया पे है, ज़ाहिर कि सब नहीं तक कमोबेश बहुत सौ ने देखे होंगे। तो बेज़बान जानवर है, तो ये बिदकता है, तो ये अगर ऊँट या घोड़ा बिदक गया तो इस पर बैठने वाला कहाँ होगा और इसके आड़े आने वाला कहाँ होगा। या ऊँट गाड़ी है या घोड़ा गाड़ी है, अगर ये खुदा ना खास्ता, तो इसलिए एहतियात अच्छी है। फिर दूसरा है कि पक्की सड़क पर इनकी जो गंदगी है ये बड़ी तकलीफ होती है, छींटे ये वो, कपड़े खराब, पाँव में लग जाएगा, जो पैदल चलते होंगे पाँव में लग सकता है, चप्पलों में घुस गया ये गंदगी। असर पढ़नी होती है, नमाजें पढ़नी होती है, कहाँ पाक करेगा। वुजू खानों पर मस्जिद के ऐसे मौके पर जो जुलूस के रास्ते की मस्जिदें होती है ना, हमको पता है ना, बहुत रश होता था, टांकी में पानी भी खत्म हो जाते थे, मुझे पता है। जुलूस के दिन हम तो नमाज पढ़ते थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो
ये आजमाइशें होती थी। तो इसलिए मतलब ये जिंदा जानवर ये पक्की सड़कों पर न लाए जाए। मिट्टी मिट्टी जहाँ होती है ना, तो उसमें अब भी ये गंदगी इसकी जज्ब हो जाएगी, लेकिन ये कि वो खतरा तो बाकी रहेगा इनके बिदकने और उछल कूद करने का बेजबान है। अब तो बंदे बेजबानों से आगे बढ़ गए, भी तो उछल कूद करते हैं और ऐसी बेहुदा हरकतें बात कर रहे होते हैं कि इसका सोशल मीडिया पे डालकर लोग पूरे पूरे जुलूस को बदनाम कर रहे होते। ये तो हमने पहले भी समझाया था, रात को भी शायद समझाया था। ऐसा अब पता नहीं है ना, अभी आएंगे क्लिप। हर फर्द थोड़ी हमें सुनता होता है, या बाद ऐसे होते हैं हम किसी के नहीं डरता, मतलब वो नहीं मानते, ना जिम्मेदारों की मानते हैं ना निगरानों की मानते हैं। अब ये इसमें जुलूस में सब बोलते मैं आगे रहूं, तो ये अब क्या किया जाए। हर बंदा सोचे कि यार हर जायज काम सबके सामने करना जरूरी नहीं, चार दीवारी में आप जो करना करो यार। उछलो कूदो, उछलना कूदना कोई गुनाह का काम नहीं है, जबकि कोई और शरीर उसमें रुकावट ना हो। लेकिन सबके सामने झंडे लेकर धमाले डालोगे तो समझ नहीं है। एक तो आम लोगों को भी सबको समझ नहीं आती, दूसरा ये करने वाले भी इसको मिसगाइड करते हैं लोगों को, ये बेचारे मिसगाइड हो जाते हैं। तो इसलिए वो एहतियात एहतियात एहतियात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो अब तो हो चुका जुलूस, लेकिन आइंदा के लिए काम आएंगे ये बातें इंशाअल्लाह। SMS के ज़रिए सवाल है, शजरा शरीफ में है दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, खादिम आले रसूल और दो जहां से क्या मुराद है? दुनिया में हम सादात किराम की खिदमत करें और आखिरत में भी इनके गुलामों में रहें। बज़ाहिर तो ये माना समझ में आते हैं अहले बैत अतार की, यहाँ भी गुलामी रहे और वहां भी गुलामी रहे, दोनों जहां में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इसकी शरह तो है शरह कादरिया रज़विया, इसमें देख लिया जाए क्या यही लिखा है। बात तो बाजार तो सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सरकार की आमद, प्यारे की आमद, मरहबा, दिलबर की आमद। झूम कर सारे पुकारो मरहबा या मुस्तफा, झूम कर सारे पुकारो मरहबा या मुस्तफा, तुम भी के दो रोजादारो मरहबा या मुस्तफा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में जुलूस मिलाद की तरकीब है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा। बारहवीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी, आ गए नबी, आ गए नबी। सरकार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, गमखार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, मौला की आमद मरहबा, मलजा की आमद मरहबा, मरहबा। बारहवीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी, आ गए नबी। नूर से सजा अर्श किबरिया, आ गए नबी, आ गए नबी। परचमों की है बहार है खुशी ये शानदार, हर तरफ बरस रही है रहमतों की जो फुहार, हर तरफ बरस रही है रहमतों की जो फुहार, हर तरफ समा कैफ से भरा, आ गए नबी, आ गए नबी। बारहवीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी, आ गए नबी।
जुलूस मिलाद में शिरकत की सादत नसीब हुई और आपने देखा ही लिया होगा सारा जुलूस मिलाद का मंजर। और सवा 6 बजे आलमी मद्दी मक्का फैज़ान मदीना में असर की जमात है और हम 6 बजे अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान मदीना के साथ पहुंच चुके हैं। बहुत शानदार माशाअल्लाह आशिकान रसूल का कहते हैं ठाटे हमारा कबूंदा सुनते हैं। ये तो एक सड़क थी फैज़ान मदीना वाली, पता नहीं कराची में कहाँ, पंजाब में, सिंध में, दुनिया भर में कहाँ जुलूस मिलाद की धूमें मची हुई हैं माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम में जिक्र उनका सुनाते जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 1448 नजदीक रबीउल अव्वल शरीफ 12 रबीउल अव्वल शरीफ ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जश्न विलादत की खुशी में जुलूस मिलाद में शिरकत की सआदत मिली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक कबूलियत का फैज़ान फरमाए और जो कोताहियाँ हुई, गलतियाँ हुई, इसमें माफ़ी मिल जाए और अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े में कबूल कर ले, अपने महबूब की सच्ची मोहब्बत अता करे और ये जुलूस मिलाद और जश्न विलादत का सिलसिला ता क़याम क़यामत कायम रहे। हम जिंदा रहें, ज़ाहिर दुनिया से जाएंगे, लेकिन हमारा ये सिलसिला जुलूस मिलाद का, जश्न विलादत का, सुबह बहारा का, ये सदा जारी रहे। इसकी बरकतें मिलें और अल्लाह करे कि हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत सारी उम्मत बख्शी जाए, सारे मरीज़ हमारे शिफा याब हों, हम सब नमाजी बने, सुन्नतों के पाबंद बने और अल्लाह पाक के पसंदीदा बंदे बन जाए, सच्ची गुलामी मुस्तफ़ा नसीब हो, इश्क़ रसूल की खैरात मिल जाए, शफाअत की भीख आमीन या रब आमीन या ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरदार की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, मरहबा। ये आखिरी में जो रमज़ान हल का मंजर था, असर की नमाज के लिए जुलूस के बाद हम दाखिल हुए ना, तो ये हम अल्हम्दुलिल्लाह जुलूस की शक्ल में दाखिल हुए। शोरका 2-4 ही थे, लेकिन भीड़ हो ये जरूरी है क्या? आलमी मद्दी मरकज़ फैज़ान मदीना से जो जुलूस यहाँ से माशाल्लाह जो निकला और इसके मंजर अभी आपने देखे हैं, अभी तो बहुत कुछ देखना दिखाना बाकी है। अल्लाह पाक ने चाहा तो हफ्ते को जो मदनी मुज़ाकरा है सुभान अल्लाह, उसमें इंशाअल्लाह मुल्क व बैरून मुल्क के इज्तिमाई मिलाद और जुलूस मिलाद के इंशाअल्लाह मनाजिर देखेंगे। इसमें ऐसी कशिश है, यकीन माने मैं वो सोच रहा था अब तो यार खत्म हो रहा है जुलूस, यार अभी और चलता है थोड़ा तो करीब आ रही है मंजिल और आ गई है ना, और अभी भी यार तिश्नगी थी इतना था दिखाया तो इंशाल्लाह बाकी है, आपने खुशखबरी दे दी है, हफ्ते को तैयार हो गया जाना, देखेंगे इंशाल्लाह, अपनी आंखें ठंडी करेंगे, कलेजा ठारेंगे, ईमान ताज़ा करेंगे इंशाल्लाह। अपनी खुराकें हैं ये, रूहानी ग़िज़ाएं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आका की मोहब्बत की बातों में मज़ा आता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। इरशाद हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा, जो किसी मजलिस यानी बैठक से फारिग होकर ये दुआ 3 बार पढ़ ले तो खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस जिक्र में पढ़े तो उसके लिए उस खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलके पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता
अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हज़रत अल्लामा कस्तलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, मिलाद मनाने की बरकत से पूरा साल घर में अमान रहता है। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक सच निजात दिलाता है। तमाम आशिकान रसूल को जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। तमाम आशिकान रसूल को जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। सरकार की आमद, मरहबा, आका की आमद, मरहबा, दाता की आमद, मरहबा, नूर की आमद, मरहबा, नूर की आमद, मरहबा, आका की विलादत, दाता की आमद, सोले की आमद, आका अत्तार की आमद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आए आखिरी नबी रहमतुल लिल आलमीन, आए आखिरी नबी रहमतुल लिल आलमीन। 12वीं की निस्बत से इंशाअल्लाह इस सफर में हम 1200 दुरूद पाक पढ़ेंगे। छाई हर सू रोशनी रहमतुल लिल आलमीन। खातमुल अंबिया मरहबा सद मरहबा, शाहे हर दो सरा मरहबा सद मरहबा, या शफी अल वरा की आमद, मरहबा, आका अत्तार की आमद, मरहबा सद मरहबा, मरहबा सद मरहबा। चलो मिलके जश्न विलादत मनाए, मकान और सारा महल्ला सजाए। चलो मिलके जश्न विलादत मनाए, मकान और सारा महल्ला सजाए। है मीलाद का जश्न सब मरहबा की, है मीलाद का जश्न सब मरहबा की, है मीलाद का जश्न सब मरहबा की। सरदार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, नूर की आमद मरहबा। चलो मिलके हर समत धूम मचाएं, चलो मिलके हर समत धूम मचाएं। चलो मिलके जश्न विलादत मनाए, मकान और सारा महल्ला सजाए। आए आखिरी नबी रहमतुल लिल आलमीन, छाई हर सू रोशनी रहमतुल लिल आलमीन। आमद मुस्तफा मरहबा सद मरहबा, या शफी अल वरा मरहबा सद मरहबा, या रसूल खुदा मरहबा सद मरहबा। आए शम्सुद्दुहा मरहबा सद मरहबा। मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से सवालात भी किए जाते हैं, और ये सवालात अब तक मदनी मुज़ाकरे में हमने जो गुफ्तगू सुनी, मसाइल सुने, फ़ज़ाइल सुने, इन्हीं से ही तैयार किए जाते हैं। अगर आपको इनके जवाबात मालूम हैं, जो नंबर बताए जाएंगे उन पर आप सेंड कर दीजिए। 24 अगस्त 2026 को मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, अल्लाह पाक की तरफ से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए लौकी शरीफ का दरख्त कब उगाया गया जिसके साए में आप आराम फरमाते थे? जवाब, मछली के पेट से निकलने के बाद। सवाल नंबर 2, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु अन्हु को जो इमामा बांधा, इसके कितने शिमले थे? जवाब, 2 शिमले। सवाल नंबर 3, ख़रीदारी करते वक्त बार्गेनिंग करना सुन्नत है, लेकिन किस मौके पर बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए? जवाब, हज के लिए ख़रीदारी करते हुए। दुरुस्त जवाब देने वालों के सिलेक्टेड नाम मोहम्मद इशफाक बिन मोहम्मद सालेह, गुलशन हदीद कराची, सैयद नाजिम हुसैन शाह नीलम कश्मीर, मोहम्मद रिजवान कराची, बिनते मोहम्मद यूनुस अत्तारिया कामोकी, उस्मान रिंद जैकबाबाद, अजहर इकबाल अत्तारी खानेवाल, मोहम्मद ओवैस खालिद बिन मोहम्मद खालिद बुरेवाला। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरान अंदाज यानी ड्रॉ के ज़रिए निकलने वाला नाम सैयद नाजिम हुसैन शाह नीलम कश्मीर।
ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. اپنا نام یا جس کا نام بھی پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کریڈٹ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر 1، دعوت اسلامی کے آغاز کے بعد دعوت اسلام کے آغاز کے بعد قریش کے وفد سے رومی بادشاہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب دریافت کیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نمایاں خوبی کا تذکرہ بھی کیا. بتائیے وہ کون سی خوبی ہے؟ سوال نمبر 2، حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کس نبی علیہ السلام کی صحبت سے فیضیاب ہوئے؟ سوال نمبر 3، حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کس علاقے سے تعلق رکھتے تھے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں. اسلام بہن اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا، وہ جو سوال تھا نا کہ خریداری میں بارگیننگ سنت اور حج کی خریداری میں نہیں کرنی چاہیے، اس میں یہ ادھورا جملہ لگ رہا ہے کہ عوام جو ہے نا اس کو ناجائز سمجھیں گے. پھر جب کسی کو دیکھیں گے کہ تو عالم صاحب تو کر رہے تھے بارگیننگ، اس لیے اس میں جواب میں یہ حصہ ضروری ہے. اب اگر دوبارہ اس کو چلائیں تو بہتر ہے کہ نہ کیا جائے. میں نے وضاحت کی تھی لیکن اب ذرا اور کیا کیا چل جاتا ہوگا. اللہ خیر کرے. بہتر ہے کہ خریداری، یہ حج کی خریداری میں بہتر یہ کہ بارگیننگ نہ کرے، نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کیونکہ وہ عام طور پہ لوگ بارگیننگ کرتے ہیں. اب یہ کہ سب اتنا نہیں دے سکتے پیسے، اتنا بعض اوقات لیکن نفس پر گراں گزرتا ہے، اتنا سامنے والا مانگ لیتا ہے، آدمی مجبور ہو جاتا ہے. اب ایسا کہاں سے لائیں گے؟ سارا مطلب جو مانگے دے دے. پتہ چل جائے گا جو مانگوں گا دے گا تو اس کو تو بالکل آزمائش بڑھ سکتی ہے. تمہارا لے کے بہتر ہے، کہیں آدمی عمل کر لے گا کہیں نہیں کرے گا تو چلتا رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دعا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کے میرے پاس موجود نیکیوں پر اور جو مجھے اپنی نیکیوں کا ثواب دیں، ایصال ثواب کریں مجھے، اس سب پر اپنے کرم کے شان اجر و ثواب عطا فرما. اور یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرما. بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ثواب مزید ان کو عطا فرما. تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشایخ عاملین، مفسرین، محدثین، بزرگان دین، کل مؤمنات و مومنین، کل مسلمات و مسلمین. جنہوں نے خصوصیت کے ساتھ جشن ولادت میں شرکت کی، اپنے گھروں کو سجایا، جھنڈے میلادی پرچم لے رہے، چراغاں کیا، اپنی حیثیت کے مطابق نیاز تقسیم کیے، ان سب کو بھی اس کا ثواب عطا فرما. آئندہ کے لیے بھی جو نیتیں کریں کہ ہم انشاءاللہ حسب توفیق اسی طرح جشن ولادت منائیں گے، کثرت سے درود شریف بھی پڑھے وغیرہ وغیرہ. تو انشاءاللہ یہ نیتیں کر لیں گے تو آپ کو اس کا نیت کا بھی ثواب ملے گا. تو ان کو بھی میں ایصال ثواب کرتا ہوں کہ جو آئندہ بھی اس طرح کرتا رہے
इंशाअल्लाह करीम। अल्लाह पाक सारे उम्मतियों को बेहिसाब, सारे उम्मतियों को बख्श दे। या अल्लाह पाक हर दावत इस्लामी वाले और वाली को बेहिसाब बख्श दे। इलाहुल आलमीन सारे गुनाह माफ़ हो जाएं। या अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को नेकियों से बदल दे। या अल्लाह पाक अपनी रहमत का साया हम पर रख। अब बहुत गुनाहगार हैं, फिसल जाते हैं, बदल जाते हैं, गफलत की नींद सो जाते हैं, अमल हो नहीं पाता। तो या अल्लाह पाक हमको बाअमल मुसलमान, सच्चा पक्का आशिक रसूल और ज़बान और दिल का एक बना दे। इलाहुल आलमीन हमारी निफाक की आदतें हैं कि ज़बान पर कुछ होता है, दिल में कुछ होता है, ये निकल जाए। साफ सुथरे सच्चे पक्के मुसलमान बन जाए, सच्चे आशिक रसूल बन जाए, आशिक सहाबा व अहले बैत व औलिया किराम बन जाए। इलाहुल आलमीन बेहिसाब मग़फ़िरत हो जाए, क़ब्र व हश्र के मामला सब आसानी से निपट जाए। इलाहुल आलमीन महबूब के सदक़े में, महबूब के दामन में हमको पनाह मिल जाए और शफ़ाअत की भीख मिल जाए। हमारे माँ बाप की, हमारे ख़ानदान वालों की, बाल बच्चों की, सबकी बेहिसाब मग़फ़िरत कर दे। हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा। हमारे मकरूज़ों के कर्जे उतर जाएं, जो परेशान हाल हैं खुशहाल हों, गमज़दों को खुशियाँ नसीब हों। इलाहुल आलमीन जिनके रिश्तों की रुकावटें हैं दूर हो जाए। या अल्लाह पाक बे औलादों को नेक औलाद आफियत के साथ बगैर ऑपरेशन के इनायत हो। मौला करीम जिनकी औलाद नाफरमान है फरमा बरदार हो जाए। घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हो तो अमन कायम हो जाए, घरेलू नाचाकियाँ खत्म हो, घर अमन के गहवारे बने, सब में मोहब्बत, इत्तिफाक, इत्तिहाद की सआदतें मिले। सब पर अपना फजल करम फरमा। या अल्लाह पाक जो मांगा वो भी दे दे, हमारे हक में बेहतर कर दे, और जो भी नहीं मांगा वो भी हमको अता कर दे। या अल्लाह पाक सारी जायज मुरादों पर रहमत की नजर फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। इन्नल्लाह काश मक्के मदीने में जाऊं, आमीन। या खुदा ऐसे बाब पाऊं, काश मक्के मदीने में जाऊं, मुझको अरमान हज का बड़ा है मौला, मुझको अरमान हज का बड़ा है। या खुदा तुझसे खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या शिमी या मुत्तलिबी या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। सलातो सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म में हिदायत
پلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پلا کو سلام جے سوہانی گھڑی چمکا کعبہ کا چاند جے سوہانی گھڑی چمکا کعبہ کا چاند اس دل فروز ساعت پلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پلا کو سلام غوث اعظم امام التقی نقا جلوہ شان قدرت پلا کو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پلا کو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پلا کو سلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا سالار کی آمد مرحبا منتھار کی آمد مرحبا مرحبا بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا آیا اسی دن احمد مختار آ گیا آیا اسی دن احمد مختار آ گیا گھر آمنہ کے سید ابرار آ گیا گھر آمنہ کے سید ابرار آ گیا گھر آمنہ کے سید ابرار آ گیا خوشیاں مناؤ غم زدو خوشیاں مناؤ غم زدو غم خوار آ گیا آیا اسی دن احمد مختار آ گیا بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا آیا اسی دن احمد مختار آ گیا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ
جس وقت کوئی مرحلہ دشوار آ گیا، جس وقت کوئی مرحلہ دشوار آ گیا، جس وقت کوئی مرحلہ دشوار آ گیا، اس وقت کام سید ابرار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا، کیوں بارہویں پہ ہے سبھی